Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kya Kahe Kazi. My guest today was Aslan Majid. Aslan Majid is a filmmaker. He recently made Beyond the Wetlands, which is a movie at the base camp at K2, which is a brilliant piece of art and groundbreaking in that no other movie has ever been made there in that way. We get to speaking about his forays in photography and motorcycling and filmmaking, obviously, the risks he's taken, the stuff that he's learned about societal disparity and how to bridge the gap, as it were, and about the artist's journey and how you must never sell your authenticity. Enjoy. 3, 2, 1. Aslan Majid. How you doing, Aslan? I'm good, alhamdulillah. What about you? Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah. So let's just start with an intro, क्योंकि मेरे जो लोग हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं, यार ये intro नहीं देता. So what are you? You're a filmmaker for sure and a I'm motorcyclist. a bunch of things, basically. Career-wise, I'm a filmmaker. Okay. But other than that, you could call me, क्या कहना चाहिए, environmentalist, Right. plus musician, Interesting. Okay. plus, whatever floats my boat. There is no one particular label that I can associate Okay, myself but with. you make your money through filmmaking. Yeah. Let's start there, and then let's go into environmentalism and all those things. No problem. So how do you? What's the filmmaking scene? What are you doing? So, शुरू मैंने किया था from, TVCs and ads and digital media content and stuff. Eventually, I progressed into documentaries. Okay. And I had been doing that since the past 4 odd years. Okay. And now I'm just entering into the world of feature films जो आप सिनेमा में देखोगे. Sure. So Inshallah. I'm just entering into that department right now. Just an entirely different paradigm. Yeah, definitely, मतलब वो definitely. different cameras and shit. Because हाँ. मैं जो है ना बड़ा चौड़ा घूमता था because I thought I knew what cinema cameras are. क्योंकि Sony और Canon ये छोटे वाले बना देते हैं ना, ये cinema camera होता है, and then they're like no, actual cinema It's camera. वो अलग beast है कुछ पूरा और altogether. You can't- exactly. People tell me you need like 5 people to operate a single camera or Definitely. something. भाई अब जैसे ये these cameras, these are pre-programmed to have the focus. Yeah, that's it. Yeah. आपको yeah. कुछ करने की जरूरत नहीं नहीं है नहीं नहीं. Yeah. In a normal cinema camera जो proper RE Alexa हो गया, Red Yeah, हो गया, yeah. they don't have focus built in. Focus का concept नहीं होता उसमें. Everything is manual. So you have one guy who's in charge of holding the camera. Sure. You have one guy who's in charge of the focus. Yeah. A focus में let's say you have a shot जहाँ पे it's a moving shot. Yeah. तो जाहिर है focus change होगा from अगर आप camera आगे जा रहा है तो पीछे वो जा रहा है. boy जो है साथ में उसका घूम रहा है. काम है to make sure कि भाई the character the subject stays in focus. सही, तो उसने ये जो उसमें एक होती है focus wheel उसे कहते हैं. सही. जो लेंस के आगे हम लगाते हैं. सही. तो उस बंदे का काम होता है उसका टाइटल है फोकस पुलर ऑफिशियली जो बोला जाता है Jeez, dude. एंड ही गेट्स पेड टू लिटरली जस्ट एडजस्ट द फोकस मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल फीट टू डू मतलब बहुत मुश्किल काम होता है हाँ. बट है It's specialized work, yeah. डेफिनेटली So then, अच्छा, I have always been of the point of view simply because I don't have the requisite expertise. मेरा हमेशा ये नुक्ता नज़र था कि ये सोनी जो है जो ये काम कर रहा है या even Canon जो काम कर रहा है, eventually they're going to democratize filmmaking. Where आपको आगे चल के ऐसा होगा कि हम आपका फिल्म क्रू ही 3 या 4 लोग होंगे, उन सबके पास FX3 या A7S3 ऐसा कोई चीज़ होगी, and they'll just be guerrilla filmmaking crews. What do you say to that? आई एग्री 100%. Yeah? I'll just give you an example. There's this guy, I'm forgetting his name, European कोई बंदा है. Okay. He transitioned from Hollywood सही. to making films on his iPhone. Literal feature films on his iPhone. तो Apple hired him for this campaign for the iPhone 12 जो अभी 3 कैमरे वाला निकला है. हम्म. So Apple hired this guy जो जिसने I think Spike Jonze नाम है उसका something बड़ा famous बंदा है. हाँ. So he made an entire 1 hour something minute feature film just on that iPhone 12. iPhone 12 Pro मेरे ख्याल Pro, से. हाँ. Yeah. तो definitely there is this shift of democratization जिस तरह आपने बात की है. तो आप DSLR अब उससे भी आप नीचे आ जाओ. हाँ. People are making stuff on 360 cameras, Sure, yeah. on GoPros, Yeah. on their And phones. they're so powerful, dude. Definitely, definitely. GoPro पे सबसे क्या है frame rate आजकल 120 I think आ गया उस पे. 240 आ गया bro. 240 on HD. 120 on 4K. हाँ, 120 on 4K. Think about this, right? And it's a GoPro. बहरहाल तो let's rewind a little bit. आप पढ़ाई के बारे में मुझे बताओ. Where did you study? So I studied from DK. Okay, yes. उसके बाद I did my A levels privately Okay. because अच्छा शुरू से ये था कि फिल्म मेकर बनना है. कितना शुरू से? यार अच्छा so let me just rewind back to when I was 5 years old. Okay.
व्हेन आई वाज 5 हर बच्चे का एक होता है ना कि यार मैंने बड़े होकर पायलट बनना है, Astronaut एक या बड़ा कुछ, कॉमन हाँ, एक सा एक है पायलट बनना. हाँ. देन यू नो स्लोली ग्रो अप एंड रियलाइज कि अच्छा नहीं दिस इज नॉट No. फीजिबल, No. तो कुछ और देखते हैं. तो फिर आई गॉट इनटू प्री मेड इनिशियली. जब आपका ओ लेवल से पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है, तो आई स्टडीड प्री मेड फॉर 6 months इन द होप्स ऑफ बिकमिंग अ डेंटिस्ट All right. इवेंचुअली. अब वो भी इस तरह था कि घर वाले सारे मतलब एक Sure. होता है ना कि बच्चा डॉक्टर बने या हाँ, समथिंग. हाँ. एंड माय सिस्टर वाज आल्सो स्टडीइंग डेंटिस्ट्री. Okay. तो एक था कि यार मेरा अब्बू का था कि Dude, tell me, did she make it? नो अनफॉर्चुनेटली Oh, okay, सही फिर सब सेट है ना. नहीं तो you would have never heard the end of it. You would have like, एग्जैक्टली. तो सही. नहीं आई एम स्टिल द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. वो तो अभी तक है. वो आपकी दूसरी हरकतें भी हैं ना कुछ. बस वो भी है, क्या कह सकते हैं. हाँ. बट इवेंचुअली सो हुआ ये कि आई गॉट इनटू प्री मेड, सही. स्टडीड फॉर 6 months. सही. एंड आफ्टर जो फर्स्ट होता है ना हमारा मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, जी बिल्कुल. दैट्स व्हेन आई रियलाइज नहीं भाई नहीं होगा ये. Good. दिस आई एम नॉट मेड फॉर दिस. सही. Fair enough. तो फिर अच्छा ओ लेवल्स में यू डोंट हैव मच ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. No. आइदर प्री मेड इंजीनियर कंप्यूटर साइंसेस या बिजनेस. Bro, DK में तो क्या options थे आपके पास? डीके कहीं पे भी नहीं थे हाँ. ऑप्शंस यार. मतलब जितने भी हमारे कराची में स्कूल्स थे कि हाँ किसी ने आर्ट्स ऑफर किया उस जमाने में इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप. No school offered any art courses, हाँ, any not in our filmmaking years, no. no photography courses, nothing of that sort. No. तो फिर यही था कि यार the least hardest thing to do was business. सही. Of course, everyone does that, yeah. So I took up business studies and वो economics, business. Accounts and economics. हाँ, सही. फिर A level में भी वही हुआ ज़ाहिर है because you don't have much options to choose from. यूनिवर्सिटी जब मैं गया तो फिर Where'd you go? I went to Greenwich. Okay. हाँ तो वो इस तरह हुआ कि यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड किया मीडिया में जाना है, Yeah, कहाँ पे जाना है, yeah, फैशन yeah. है, ये है वो है. तो आई डिसाइडेड किया मैंने, मतलब शुरू से था कि मैंने फिल्म मेकिंग वाज ऑलवेज यू नो इंग्रेन्ड एट द टॉप एट द बैक ऑफ माई हेड. Wow, why? अच्छा सो व्हेन द यू नो आपके मोबाइल्स आना शुरू हुए थे विद द कैमरा. हाँ जी. सही है. आई थिंक 2004-5 की बात है, जी, yeah. जहाँ पे उस जमाने में आया था VGA कैमरा. जी. दैट वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ वीडियोस जो आप मोबाइल में कर सकते क्या थे. नाम था उसका यार? सैमसंग का नहीं होता था वो? सैमसंग के, नोकिया, मतलब सारे हाँ. आ गए थे. वो उसमें वो था कि VGA उसकी जो क्या कहते हैं कैटेगरी होती है क्वालिटी की, वो VGA कहलाता था. अब उसका अगर आप डायमेंशंस की बात करें, आई थिंक इट्स 120 बाय समथिंग, ऐसे कुछ पिक्सल्स होते हैं. शक्ल नज़र नहीं आती, सिर्फ बॉक्सेस होते हैं, लेकिन यू कैन मेक आउट कि हाँ इट्स अ फिगर, इट्स अ बंदा. श्योर, या. तो जो अभी हम टिकटॉक का जो हमारा जो कंटेंट है ना, आई यूज्ड टू मेक दैट विद दोस कैमरास उस ज़माने में. सही. अच्छा अब कोई नो प्लेटफॉर्म, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, ना कुछ भी नहीं था उस टाइम में. तो इट वाजंट फॉर एनीबडी एल्स, इट वाज फॉर मी, मतलब मेरे अपने खुशी के लिए. तो मैं इस तरह होता था कि माई सिस्टर गॉट अ फर्स्ट फ़ोन व्हेन आई थिंक इन 2006 और समथिंग. तो उसमें वो नोकिया का आया था जिसमें वो ना नीचे वाला हिस्सा घूम जाता था. 32 समथिंग द म्यूजिक वाला. बिल्कुल. तो शी गॉट दैट फोन एंड फिर आई यूज्ड टू जस्ट यू नो टेल हर टू यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाओ. सही. कुछ व्हाटएवर रैंडम स्टफ जो भी दिमाग में आ गया. सही. तो फिर इवेंचुअली दैट प्रोग्रेस्ड इनटू यू नो व्हेन आई गॉट माय ओन मोबाइल फोन. तो फिर द फर्स्ट फोन आई गॉट वाज N90 नहीं सॉरी सोनी का था W850i, जो स्लाइडिंग वॉकमैन सीरीज का. The Walkman series. Yeah. Okay, all right. So what I used to do was कि I used to you know छुपा के स्कूल लेके जाता था and I used to make videos in the school. That's crazy, dude. अच्छा फिर eventually क्या हुआ कि I sort of created this show जिसमें हमारे स्कूल के जो भी होते थे कहानी होती थी, whatever happening, जो भी है, कोई बसंत पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, ये इसको बुली कर रहा है, whatever XYZ. I used to make that into a short 5, 6, 10 minute show and upload that on Facebook. और सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ही देख रहे होते थे उसे. Okay, sure, of course. सही है. And I did that till I think जब तक स्कूल में था तब तक मैं कर रहा था ये सारा. अच्छा फिर then there was a short gap of 2.5 years जब मैंने मतलब I completely you know gave up filmmaking as a whole. मतलब कुछ समझ में नहीं आया जब I was doing my A-levels privately. How come? I don't know, मतलब things just I wasn't interested in it. या पता नहीं priorities थोड़े से ठीक है. वो हो गए थे, मिक्सअप हो गए थे. फिर जब यूनिवर्सिटी में आया तो आई सेट कि यार नहीं ज़्यादा अब टाइम नहीं. अच्छा हुआ ये जो होता है ना कि जब आप बच्चे होते हो तो मतलब इन द सेंस व्हेन यू आर इन स्कूल आप कहते हो यार जब मैं कॉलेज में आऊँगा तब मैं बड़ा हो जाऊँगा. Yeah. फिर आप जब कॉलेज में आते हो आप बोलते हो मैं जब यूनिवर्सिटी में आऊँगा तब मैं बड़ा हो जाऊँगा. सही. यूनिवर्सिटी से आगे कोई और बाहर नहीं होता आपका उस जमाने में. और आप बड़े फिर भी नहीं होते. आप बड़े कभी भी नहीं होते. बट एज अ किड दैट्स व्हाट यू कीप टेलिंग योरसेल्फ. Yeah, sure, of course. Yes. सो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया ना था ऐसा यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब करना है तो होगा, नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा. सही.
सो फिर यूनिवर्सिटी में आके आई गॉट एनरोल्ड इनटू दिस मीडिया प्रोग्राम. ठीक है. वहाँ पे आई रियलाइज्ड कि यार इट्स टू स्लो फॉर मी इन द सेंस कि The program. हाँ. और ये नॉट ओनली इन माई यूनिवर्सिटी, जितने भी बाकी मेरे मीडिया के दोस्त हैं जो भी किसी और मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल जो NCA कहलाता है फिल्म मेकिंग के उसमें सीखने के लिए, एवरीबडी हैड द सेम प्रॉब्लम कि यार वो कह रहे हैं यार इतने पुराने ज़माने की पढ़ाई हो रही है, घिसे पिटे वही हम लोग किताबों से काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कुछ ऐसा है नहीं. तो यही होगा कि एट द एंड ऑफ द 4 years आपको डिग्री मिल जाएगी, यू विल गेट टू मेक कॉन्टैक्ट्स, बट अगर आप ये बोलो कि यार यूनिवर्सिटी से मैंने एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे हैं कि मैंने किस तरह कुछ बनना है या फिल्म्स बनानी है या व्हाटएवर जो भी आपने करना है, तो nobody in my circle particularly had positive things to say That's about. unfortunate too. Yeah. But it is how it is. It is what it is. Say. So I think I did that for 1 year Mm-hmm. and उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई नहीं होगा, so I dropped out Okay. From Greenwich. Okay. from Greenwich. Okay. अच्छा, when I dropped out तो उसी वक्त मेरी जॉब लगी थी एक कंपनी में as a video producer. So initially I went in as an intern. Okay. And then they liked my work a lot, तो उन्होंने मुझे फिर फुल टाइम ऑफर कर दिया. Video producer मतलब? वीडियो प्रोड्यूसर इन द सेंस कि जो भी सोशल मीडिया का काम होता है, जो वीडियो कंटेंट होगा, दैट्स माय डिपार्टमेंट. Okay. Okay. सो यही हुआ कि फिर आई वर्क देयर फॉर 2 years. अच्छा, वहाँ पे व्हेन आई वेंट देयर तो आई सेट माई सेल्फ दिस गोल कि यार मैंने ना यहाँ पे एक TVC बना के निकलना है. Wow. आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट. Yeah. मतलब मुझे कोई किसी ने सिखाया भी नहीं कि यार, या किसी ने बताया नहीं यार ये करना होता है, ये करना होता है. यूजुअली ये होता है जो अब मुझे पता चला है कि जो एजेंसीज होती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज, you have to sort of be in touch with the people who are in the marketing agencies. You have and to be then buddy with them. exactly. There is no, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको कोई बंदा ढूंढ के लेके आएगा कि यार मेरे लिए ये ऐड बना दो यार. नहीं. इस तरह नहीं होता. नहीं सर, नहीं. तो उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि यार क्या है, मतलब how does this thing work. तो हुआ ये कि for 2 years मैंने उनके लिए सारे सोशल मीडिया का काम किया, मतलब जो उनका फेसबुक के वीडियोस हैं, यूट्यूब के वीडियोस हैं. What year is this यार? This is 2015. सही है. And 2015 में you were getting paid decent amounts? Very good amount. Very good amount for social media. Very good amount. That's for social phenomenal, dude. Yeah. media. Yeah. So अच्छा, फिर ये हुआ कि जब ये मैंने काम मतलब करता रहा 2 साल and everything. So there was this campaign for that company. अच्छा, this company was an MNC based in Germany. Okay. But उनका locally यहाँ पे काम चल रहा था. Oh no shit, they were paying you well. अच्छा. That makes more sense now. All right. Sorry. अच्छा, so it was an e-commerce brand, तो ठीक है. इस तरह they had a lot of budget and everything. सही. अच्छा, फिर हुआ ये कि हमारे जो कंट्री मैनेजर थे उन्होंने कहा कि यार अरसलान, हमने टीवी का एक ऐड बनाना है एंड I've been watching you for the past 2 years now, तो तुम्हारा काम तो अच्छा है, but do you think you can take on this project? Can you make a TVC? He's like, sir, little did you know. नहीं, I was questioning myself कि यार नहीं यार, बात तो बंदा सही कर रहा है, मैंने ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं ऐसा, तो how can I make something that will 22 करोड़ आवाम बैठ के टीवी पे देखेगी, मतलब it's a big responsibility. Sure. So उन्होंने कहा कि यार देखो what we are doing is कि हमने एजेंसीज को पिच भेजा है कि भाई हमारा ये कैंपेन आने वाला, तो आप हमें आइडियाज़ पिच करें, विच एवर आइडिया वी लाइक, हम उस एजेंसी के साथ जाएंगे एंड ये X अमाउंट ऑफ बजट है हमारा, तो इसमें हमने ऐड बनाना है. अच्छा, बिफोर दैट ही सेड कि यार मैं बिफोर लिसनिंग टू एनी ऑफ द एजेंसीज पिचेस मैंने तुम्हारा पिच सुनना है. यू ब्रिंग मी योर ओन आइडियाज़, यू ब्रिंग मी योर ओन बजट, एंड इफ़ वी लाइक योर आइडिया द बेस्ट, तो फिर हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे. How old are you at this point? I am 21, I think. 22. Come on, dude. This is getting exciting. All right. अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा होता है ना कि whenever you are in a position जहाँ पे you want to do something but you don't know how to do it, तो आप yes तो बोल देते हो. जी. बट फिर बाद में आपको बोलने के बाद ये होता है यार ये मैंने yes तो बोल दिया, अब मैं कैसे होगा? करूँगा कैसे? हाँ, सही. होगा क्या? सही. अच्छा, तो उनका ये था कि अच्छा my idea was jingle based TVC. तो उन्होंने कहा अब जिंगल भी तुम बनाओ. अच्छा, मैं कहा यार अच्छा म्यूज़िक का तो शौक है मुझे, मतलब आई डू प्ले द गिटार ऑन एंड ऑफ एंड ये सारी चीज़ें, गाने वाने भी कभी कभार लिखे हैं, मे बी शायद हो जाए, कुछ हो जाए. तो एमी रैंडमली, मतलब कल मुझे आइडिया प्रेजेंट करना है सुबह, रात के 9-10 बजे तब तक मुझे कुछ आइडिया आया नहीं, कुछ दिमाग में, नथिंग सॉलिड कि यार ये मैं पिच कर सकूँ. तो रात के टाइम में बस रैंडमली गिटार उठा के बस आई एम जस्ट डूइंग रैंडम शिट, कि कोई सर पैर नहीं है, बस आई एम जस्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग माई सेल्फ कि यार अच्छा ये होना चाहिए, इस तरह का कुछ होगा. तो आई मेड दिस शॉर्ट 30 सेकेंड जिंगल. अगले दिन मैं ले गया अपने कंट्री मैनेजर को पिच किया, यार दम तो है,
अच्छा हाँ मतलब फर्स्ट टाइम में ना मज़ा तो है यार इसमें, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑफ कोर्स बट मज़ा तो है। श्योर मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा अब फिर जितने भी हमारे बाकी पिचेस आए तो आई वाज इन दोज मीटिंग्स एज वेल कि आई वुड गेट टू सी व्हाट दे आर पिचिंग एंड उनके आइडियाज़ क्या हैं स्टफ। तो अपेरेंटली मतलब अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह करम है हाँ। जो हमारे कंट्री मैनेजर थे ही सेट यार मैंने सबके आइडिया सुन लिए, अरसलान का आइडिया अभी तक बेस्ट है। सही ऑलराइट है। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोई दोस्त है या रिश्तेदार है या व्हाटएवर, नथिंग लाइक दैट। यू आर गोइंग टू हैव टू एक्जीक्यूट दिस फॉर एग्जैक्टली सही है ना। तो उनका ये था कि ही वाज यू नो, होता है ना कुछ लोग होते हैं वो देख के बता देते हैं यार ये बंदा ही हैज़ समथिंग, मतलब कुछ पोटेंशियल है। तो वो वैसे थे, बड़े अच्छे इंसान थे वो। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा अरसलान अब ये वी गोइंग विथ योर आइडिया, ठीक है बट वही बात है कि कैन यू डू इट, बिकॉज ज़ाहिर है हमें ऊपर जाके जर्मनी में जाके रिपोर्टिंग देनी होगी, सही, सारा सही। मतलब हिसाब देना होगा। इट्स सो मच तो वो भी पूछेंगे कि यार ये कौन सा टुच्चा आया था जिससे तुमने ये काम कराया। सही 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 तो सही है तो फिर वही बात है। अच्छा फिर क्या हुआ इन द कंपनी ना, हमारे जो कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि यार नहीं यार, मतलब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक हिज आइडिया एंड गेट इट डन बाय सम प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है। राइट सिंस यू लाइक द आइडिया सो मच लेट्स जस्ट डू द आइडिया या अच्छा मेरा दिल ना मतलब टूटे जा रहा है कि नहीं यार, नो आई कांट लेट दिस हैपन, मतलब इट आई वांटेड टू डू दिस माई सेल्फ, आई कांट अलाउ समबडी एल्स टू डू इट, दिस इज माई बेबी। सही अच्छा तो ये हुआ एंड देन माई आइडिया वॉज एक्चुअली गिवन टू अ बंच ऑफ अदर कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज। नहीं हियर मी आउट कि भाई ये आइडिया है, हमने सोच लिया क्या करना है, हमें बस ये चीज़ आप बना के दे दो, कोटेशन दो कितने में करके दोगे। हाँ तो जितने भी प्रोडक्शन कंपनीज आए उन्होंने कहा कि ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। क्या अमाउंट दे उसे मतलब इट वाज मोर देन व्हाट वी इनिशियली हैड इन माइंड। जो Yeah. हमारी कंपनी का बजट था Yeah. उनका व्हाट दे वर कोटिंग वाज वे हायर देन दैट। सो मैंने उनको कहा, जो कंट्री मैनेजर थे, मैंने कहा कि यार आई कैन डू इट इन लेस देन द अमाउंट जो आपने बजट सेट किया है, Oh, आई कैन डू इट, जस्ट गिव मी अ चांस। सही तो उन्होंने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा जी डन। हम्म, उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं। हम्म, अच्छा आई डिड दैट, एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ हो गया, सबमिट हो गया। अच्छा द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट ऑन टीवी आई कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग टू यू। मतलब मैं आई एम अ 22-year-old who has never made any TVC, who has never been to an actual production shoot, and उसका काम टीवी पे चल रहा है। Are you at liberty to say what ad it was? It was अच्छा, so the company was दराज का, आपको पता होगा। हाँ जी दास का मुझे पता है। So I was working in a sister company for दराज जिसका नाम था Kemo.pk। ठीक है ठीक है। सो इनका ये सीन था कि these companies were modeled after Amazon and eBay, सही of course बट जो हमारी पेरेंट कंपनी थी दैट वाज अ जर्मन इंक्यूबेशन कंपनी कह लो, जिसका नाम था रॉकेट इंटरनेट। ओके So that company was acquired by Daraz. So eventually we got shifted to Daraz ठीक है later on. So the ad was about. Acha, this was the second campaign of that company. Sahi. मतलब the second time we went on TV. सही 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 First time costed about. No, I can't quote that figure. Sorry, No, you वो can't. मसला हो Okay, जाएगा. I okay, can't. yeah, no, I can't quote the figure exactly. okay okay But the first time was about, give or take, 200% more expensive so all right okay than what okay. I did For a company for a company. सही है so that's serious yeah That's very serious. Yeah, मतलब yeah. आप इस तरह ये imagine करो कि इंसान का सीन नहीं है ये कंपनी है पूरी। Exactly, हाँ, exactly. सही अच्छा तो फिर ये हुआ कि सेकंड टाइम में ना व्हाट वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट कैंपेन वाज कि यार अच्छा वी ट्राई टू एमुलेट अ कॉन्सेप्ट जो कि बाहर किसी और कंपनी के लिए सक्सेसफुल हुआ होगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सो लेट्स जस्ट डू समथिंग न्यू For Pakistan, फॉर पाकिस्तान, जो लोकली आवाम उसको एक्सेप्ट कर सके। सही 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 तो अच्छा माई आइडिया वाज बेस्ड ऑन द भंगड़ा कल्चर ऑफ पाकिस्तान। okay तो वो ये ना कि व्हाटएवर यू, आप कुछ भी बेचो ना, अगर आप उसमें देयर इज अ भंगड़ा एलिमेंट टू इट, इट सेल्स। आई डोंट नो व्हाई इट डज, व्हाई इट इज दैट वे, बट इट हैपेंस। अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के इलाका की मैं बात कर रहा हाँ हूँ, यहाँ पे तो एक थोड़ी एजुकेटेड कम्युनिटी है, सो यू वांट बेटर कंटेंट, बट जो इंटीरियर साइड में, जो बाहर आपके इन सिटीज़ के अलावा जो पाकिस्तानी बैठे हैं, वो ऐसे खाते हैं भंगड़ा को, ऐसा हजम करते हैं कि बस आपको पता भी नहीं चलता। gravitate towards dance and music and stuff exactly, sure okay yeah. So my concept was, the jingle was based on a Qawwali / Bhangra sort of jingle, okay and the video was also based on that. okay So धूम मच गई भाई। alhamdulillah सही है। कहाँ से लोग मतलब वो लेटर्स लिख रहे हैं। अच्छा वो एक होता है ना कि आपको लोकली तो तारीफ कर रहे हैं, sure okay yeah, राइट, yeah. एंड लोकली पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। okay हुआ ये कि दिस कंपनी वाज आल्सो ऑपरेटिंग इन नेपाल एंड इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश। oh shit son. वहाँ से जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस कंट्रीज़ के हैं वो तारीफ कर रहे हैं बैठ के, वो कह रहे हैं यार दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, मतलब हमें भी, क्योंकि दे आल्सो अंडरस्टैंड उर्दू अ बिट,
तो उन्होंने कहा यार हमें ही बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड वी आर ऑल्सो, हमारे ऑफिस में भी सारे बैठ के उसको मतलब बड़ा अच्छी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं. That's a beautiful thing, man. Yeah, And you risked it. You definitely risked something definitely, for your dream. definitely, and it worked out in the end. Alhamdulillah, but Yeah. वही वाली बात, there was always risk, and हाँ. अभी तो आप कहानी बता रहे हैं मुझे, और जबरदस्त मजा आया था उस वक्त. कुछ उस और वक्त कैफियत तो होगी, I'm बिल्कुल sure. भाई, हार्ट अटैक इन एवरी सेकंड भाई. अल्लाह तो रहम खैर अच्छा, फिर हुआ ये कि अच्छा दिस जर्नी वाज फॉर 2 years, मतलब जिस ठीक है. दिन से मैंने ज्वाइन किया हाँ, तब से द पॉइंट ऑफ आई एग्जीक्यूटेड दैट सही. टीवीसी सही 2 साल लगे. सही अच्छा, जब मैंने ज्वाइनिंग की थी तो उसी वक्त मेरा गोल यही था कि मैंने टीवीसी बना के निकलना है यहाँ से. सही सही. जब वो हो गया मैंने कहा यार देयर इज नथिंग मोर आई कैन डू हियर, सो आई क्विट, Alright. आई रिजाइन. उन्होंने बड़ा रोका कि भाई नहीं भी, यू आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स, तो लेट्स नॉट बी हेस्टी. बट आई आस्क्ड माई सेल्फ यार इफ अभी आई एम इन माई कंफर्ट जोन, Yes. आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, Sure. बट इफ आई डोंट वेंचर आउट एंड एक्सप्लोर अदर थिंग्स देन मैं हमेशा यहीं बैठा रह जाऊँगा. I think that's a fucking powerful thing to think about, especially at that young age, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके वर्कर्स होते हैं ना, जो कंपनीज होती हैं, वो ये करती हैं. कोलोकियली स्लैंग में इसको बोला जाता है बंदे को हैवी कर दो. Do you know? Like आप गए वहाँ पे, you're this starry-eyed kid and you've accomplished this, which is what your dream was. You're like, all right, now let me go out and search, because I'm comfortable, but I'm not really comfortable, right? And I don't want to be really comfortable. Companies क्या करेंगी, आपको गाड़ी दे देंगी. ये ले अरसलान, Civic ले लेना. And you're just like, God damn, this is really nice now. Very tempting. You know? Yeah. And वो heavy कर देते हैं बंदे को. But anyways, but you're like, नहीं, मैंने जाना है. हाँ. Yeah, before, so let me just ask you to rewind a little bit. So how did you execute the TVC? Did you get a crew? Did you do it yourself? अच्छा, What so, cameras? एक चीज़ होती है जो हमारे टेक्निकल टर्म है, हम कहते हैं स्केलेटन क्रू. अब फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू हैव 3 cameras here, right? Yes. You have one operator operating these 3 cameras. Yes. This is a skeleton crew. Okay. नॉर्मली होता ये है कि ईच कैमरा हैज़, अगर प्रोडक्शन टीवीसी की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ. ईच कैमरा ऑन एवरेज हैज़, अच्छा इसको यूनिट कहा जाता है सही. कि यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी. ठीक है. तो ईच यूनिट हैज़ ऑन एन एवरेज कुछ नहीं तो 5 बंदे होते हैं. Because of the REs and the Alexas हाँ, and all हाँ, those things, definitely. obviously. Yeah, okay, okay. सो हमने क्या किया था कि वी ओनली गॉट 1 कैमरा, रेंट पे हमने उठाया था. क्या था, कौन सा था? ब्लैक मैजिक अर्सा. How, उसका क्या रेंट होता है? चलो ये उसका बताओ. रेंट होता है उस ज़माने में था आई थिंक 30,000 पर डे. Per day. And how long did it take you to 3 finish days. it? 3 days. 3 days. All right, goddamn. Okay. सो अच्छा 30,000 होता है आपका कैमरे का, एंड देन फिर जितने लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको उनको जाहिर भी है. देना होता है. हाँ. तो मतलब एक ऑपरेटर का भी अलग से पैसे होते हैं. जाहिर है, हम 5 लोग चाहिए. हाँ. कहाँ से लोगे? सही. तो हमने क्या किया था कि वी ओनली गॉट अबाउट 4 people आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है. मतलब किसी का काम था कैमरे का, स्लाइडर के अलग बंदे थे. 4 people, 1 camera. 4 people 1 कैमरा, बस हमारे लिए काफ़ी था. एंड अ बंच ऑफ लेंसेज जो भी होते हैं. तो हमने ये कहा था कि यार हमें कोई शशका नहीं करना, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, सिर्फ इतना हो मिनिमम के काम हो जाए, Execute the thing. एग्जीक्यूट हो जाए और That was a अच्छा हो short जाए. list. या हाँ. मतलब पूरे स्टोरी बोर्ड हमने सारा उसके, फिर जो हमारे डीओपी थे उन्हें हम, अच्छा आई हैड नेवर वर्क विद दैट डीओपी बिफोर. तो अच्छा मज़े की बात, मुझे पता भी नहीं था कि यार रेंट कहाँ से होता है. अच्छा अब ये मैं कब मुझे पता चल रहा है, व्हेन आई सेड येस टू द कंट्री मैनेजर, और अब मुझे बोला गया कि यार अच्छा इस दिन को हमें चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, तो आप जाके मुझे इस दिन तक आप ला के दो. अच्छा मुझे ये बताओ, you didn't know where to rent it from. I Did you have any knowledge of cameras? अब लिटिल बिट यस, मतलब DSLR का तो मुझे था बिकॉज आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन. क्या हो गया यार? नहीं इस तरह अब सिनेमा कैमरास का तो कभी देखा नहीं यार वही अब ना. फ्रंट, तो मतलब क्या पता होगा उस बंदे fucking मतलब. crazy, dude. Yeah. अच्छा सो मैं फिर गया सदर, Okay. वहाँ पे एक जगह है रीगल के सामने जिसको कहते हैं कैमरा मार्केट. Okay. All right. सो आई आस्क्ड अराउंड कि यार मुझे इस तरह ये कैमरा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, और ये अच्छा वहाँ पे भी ना यू हैव टू, अगर इफ दिस सेंस दैट यू आर एन अनाड़ी तो फिर Oh, आपको dude. खा जाएंगे, पी जाएंगे, खाना भी छोड़ो, चबाने की जरूरत भी नहीं है उनको. तो अच्छा फिर हमारी स्ट्रैटेजी ये थी, मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो हम लोग साथ गए थे फॉर दिस प्रोजेक्ट. हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने ऊपर से आना है. Of course. हमें सब पता है भाई Yeah, क्या, yeah. और कुछ नहीं पता यार, मतलब अपार्ट फ्रम द यूट्यूब वीडियोस हमें कुछ नहीं पता नहीं, यार आरी के क्या. ऑफिस से आ रहे हैं हम भाई. तो हाँ यही हमारा हाँ. माइंडसेट में यही था हमारा. अच्छा खैर इस तरह भी गए हम लोग मार्केट में गए, हमने लोगों से पूछा भाई रेंट करना है कहाँ से होगा, कितने का होगा, ये वो XYZ. तो एक जहाँ जिस दुकान से हमारी डील हुई थी, अब उसके जो अच्छा हिज गाय वाज नॉट अ DOP प्रोफेशनली. Okay. He was simply someone who called himself a camera operator. Sure. Because ज़ाहिर है वो जब रेंट करते हैं तो वो सिर्फ आपको कैमरा नहीं देते, वो आपको एक ऑपरेटर भी उनका ही आता है जो आपको वो सारा सेटिंग करके देता है. सही. तो मतलब he had never worked on a TVC as well पहले,
ठीक है. बस उन्होंने ये था कि उन्होंने कैमरा ख़रीद लिया और अब रेंट करना है तो फिर वो सही. साथ जाएगा. सही. तो उससे फिर मुलाकात हुई. फिर उसने उसको स्टोरी बोर्ड दिखाया कि सेट के हाँ सर सब हो जाएगा, चुटकी के मसला ही काम है, नहीं. कोई मसले की बात. अच्छा वी ऑल्सो थॉट कि नहीं यार बंदा अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो शायद है. वो आपके भी ऊपर से आ रहा था. वो मेरे भी ऊपर सा. It's just like, सर ये क्या मसला है. हाँ. तो अच्छा फिर हम लोग जब गए ना, अच्छा अपार्ट फ्रॉम द कैमराज यू हैव टू रेंट लाइट्स एज वेल. Of course. अब Yes. आरी के लाइट्स होते हैं 2K 1K इस तरह अलग. अच्छा K स्टैंड फॉर 1000 वोल्टेज. Yeah. तो 2K का मतलब 2000 वोल्ट की लाइट है. Yeah. अब 2000 वोल्ट की लाइट ना आपके नॉर्मल सॉकेट पे नहीं लगती. नहीं लगती है. yes. We did not know that. Oh, of अच्छा course. we expected कि यार ये बंदा आया है तो इसको ज़ाहिर है प्रोफेशनल है, Switch में डाल दो इसको. ये इसको तो पता होगा, इसने क्या सारी चीज़ें, इसको ये एक्सपर्ट है. अब जिस घर पे हमने शूट करना था उसने नॉर्मल सॉकेट में डाल दी, पूरे घर की वायरिंग जला दी उसने. बिकॉज वी हैड 4 लाइट्स, तो मतलब 8000 वॉट आपके एक कमरे में आपके लाइनों पे चल रही है. But the lights okay. आई थिंक दे वर. उसके बाद मैंने पूछा नहीं बट सारे घर की वायरिंग जल गई. अच्छा मिड शूट Oh my goodness. वायरिंग जल गई. अब हम लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि यार क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट कैन वी डू नाउ. तो यूजुअली होता है कि यू हायर यू रेंट आउट अ जनरेटर प्रॉपर जो हाई एंड होता है, जी. उसमें कनेक्शन होते हैं जी, सारे. जी, लाइट जी, होगी, जी. लाइट हो गए, कैमरा हो गए, सारी चीज़ों के जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो जनरेटर पे चलेगा. ऐसे ही है. ये ना उसे पता ना ये मुझे पता. But these are such small conventions, na? And you weren't even necessarily trying to save वो generator का खर्चा. You just didn't know to spend. I didn't know. Yeah. ठीक है. बट इवेंचुअली हुआ ये कि व्हेन द लाइट्स वेंट आउट तो हमने कहा यार अच्छा तो अब क्या करें. फिर हमने कहा कि जो हमारा इंडो जो शूट था वी मेड अ मेकशिफ्ट सेट आउटसाइड, सो वी यूज्ड द सनलाइट टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग शूट. That's crazy. माशाल्लाह. पर और ऑप्शन नहीं था ना, व्हाट कैन वी डू. मतलब आपको आज का पर डे के हिसाब से आप रेंट दे रहे हो. जी. अब मैंने आगे कोटेशन दे दी है कि भाई इतने में हमारा काम हो जाएगा. हाँ. अगर इफ़ आई टेक वन मोर डे टू इट तो फिर 30,000 रुपये, 30,000 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसे और ऐड हो जाएंगे. तो आई कुडंट डू दैट. एंड इफ़ आई मेक अ मिस्टेक नाउ और वो बात आगे चली गई तो फिर वो भी डर है कि यार हाउ विल द कंपनी द बॉसेस रिस्पॉन्ड. Sure. तो मैंने कहा कि यार अच्छा जाने तो नहीं देना है, बस जो भी करना है अभी करना है, किसी तरह जुगाड़ करके आप लोग एग्जीक्यूट करना है. सही. तो यही हुआ कि हमने फिर आउटसाइड सारा इसका काम शिफ्ट किया और फिर काम हो गया. एंड वी डिडंट टेल एनीबॉडी. No, of course not. Filmmaking seems like such a sexy pursuit, no? It's glamorous. Sure. बट कैमरे के जो सामने है ना वो ग्लैमरस है. कैमरे के सामने या फिर कोई बंदा जो प्रोडक्शन हाउस का ओनर है उसके लिए सेक्सी या उसके लिए भी मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मतलब इट्स नॉट कि यार हाँ बस कैमरा ले लिया, माइक ले लिया, लाइट ले लिया, काम हो गया. ऐसा नहीं होता. पूरी एक साइंस होती है. श्योर. राइट. तो अच्छा इसमें अभी जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि अच्छा आई ऑल्सो ओन अ प्रोडक्शन हाउस. Dude, okay. What's it called? AWB Films. AWB Films. So उसमें ये है कि a lot of people just end up buying all the equipment necessary but they don't know how to use it properly. No, of course not. Yeah. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप अगर कोई भी लोकली प्रोड्यूस्ड ड्रामा देख लो, नॉट द फिल्म्स, ड्रामे में क्या होता है कि देयर इज सो इफ़ यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ लाइटिंग एंड एवरीथिंग तो इतनी इनकन्सिस्टेंसी होती है उसमें कि आप बोलते कि यार अगर इफ़ यू नो द एक्चुअल साइंस ऑफ लाइटिंग एंड कलर ग्रेड एंड एवरीथिंग, आप बोलते हो यार हाउ डिड दिस गाय, मतलब ये व्हाट वाज ही हाई ऑन, ये क्या कर रहा था. On everything. He was high on एंड everything. इट्स नॉट कि चलो एक सीन या एक शॉट या एक एपिसोड ऐसा, द एंटायर सीरीज इज बेस्ड ऑन दोज. यार Aslan, उसमें जो है could it be at all that they're trying to save money? I don't think so. नहीं. They're just because incompetent. they have money. Yeah. I'm talking about the dramas that जो आप जियो में देख रहे हो. जी. ये हाई एंड लेवल है, मतलब इससे ऊपर पाकिस्तान में और है नहीं. नहीं. Right? तो they do have the budget. Yeah. They do have all the money. बात सिर्फ ये है कि they a lot of मतलब सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर उसको नहीं कह रहा है, जनरली एक बात कर रहा हूँ. हाँ. A lot of filmmakers in Pakistan they are reluctant to innovate. Sure. Yeah. अब I remember I was watching this आपकी मैं तला गौरी का मैं आपका वो वीडियो देख रहा था. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि यार पुराने ज़माने में ना जो फैशन शूट होते थे 45 डिग्री एंगल में एक यहाँ पे लाइट लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी, काम हो गया. और वो अभी तक चलता आ रहा था. यही सेम प्रिंसिपल हमारे वीडियोग्राफी में भी चलता आ रहा है, चाहे वो ड्रामे में हो, टीवीसी में हो, फिल्म्स में अभी थोड़ा सा इनोवेशन आना शुरू हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह. बट जो आपके नॉर्मली एवरीडे कंटेंट है उसमें अभी तक वही प्रिंसिपल्स चलते आ रहे हैं. तो उस पे जो है ना वही वाली बात है ना, व्हेन यू से दैट पीपल अगेन वही वाली, वी हैव स्पोकन अबाउट दिस एट लेंथ ऑन अदर पॉडकास्ट, यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर द पॉडकास्ट इवन, कि वी डोंट हैव द एबिलिटी
to house a contradictory argument. मेरे में ये बर्दाश्त ही नहीं है कि मैं बोलूँ मैं आपका जो है वो नुक्ता नज़र सुनूं अगर वो मेरे नुक्ता नज़र के अगेंस्ट है. प्रॉब्लम इज व्हाट यू आर सेइंग दे विल ऑलवेज टेक इट एज एंटागनिज्म. कल का बच्चा तू क्या बता रहा है हमें, हाँ जुमा 4 दिन नहीं हुआ, ये सब बातें आपने सुनी होंगी. मैं यू नो जैसे मैंने सुनी आपने उससे ज़्यादा ही सुनी होंगी. प्रॉब्लम इज आप उनके भले की बात कर रहे हो. इफ दे डोंट इनोवेट, now we just spoke about the FX3s and the A7S3s. If they don't fucking innovate, there's going to be someone like you or someone like Wahab who's younger than you, right? कोई ना कोई आएगा और वो इनकी तबाही कर देगा. हो रहा है ये. हाँ, और ये अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है. और ये हो रहा है क्योंकि वो लड़के जो हैं they're in the field. जैसा this is what I think about. On average, whenever I have to, because I also do now, I've started doing the log now. And it's just an entirely different ball game because now I know that every time I am like whatever lying down, eating food, just being some kind of leisure activity, playing. I don't play video games anymore, but working out, whatever. There's some dude in the sun, in the dirt, shooting. How are you going to compete with them with this attitude कि आपको जो है just go send someone जो lighting सीख ले. एक आपका सीखा हुआ बंदा होगा. या देखो ऐसा नहीं है कि सीखना इज मतलब यहाँ पे जाओ तो आप सीख लोगे, ऐसा नहीं है. मुश्किल है. फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट जुगाड़ू काम जो है ना, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी कौम जिसमें हम एक्सपर्ट है, इसमें ये पूरा जुगाड़ू काम है. सही. अब आप जब अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हो, फिल्म स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो वो आपको बेसिक सिखाते हैं यार. अच्छा ये लाइटिंग के ये इसको केल्विन कहते हैं, इसे टेम्परेचर कहते हैं, ये करने से ये होता है. सही. वो ये नहीं बताएंगे कि आपने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये करना है. सही. राइट. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रेकी करने आता है ना बिफोर द शूट, रेकी मतलब आप स्टडी करने आते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें इन माइंड एट द बैक ऑफ आपके चल रही होती है. सही. कि यार अच्छा यहाँ पे इफ यू नो डूइंग दिस शॉट विद दिस सेटिंग, और अगर आउटडोर शूट है तो सन यहाँ पे होना चाहिए, अगर सन यहाँ हो तो उसकी लाइट ऐसे होगी, तो मुझे उसे काउंटर एक्ट करने के लिए ये करना होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से आपके दिमाग में आनी चाहिए. आपको कोई सिखाएगा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई फिल्म स्कूल, कोई and nobody will teach you this. So I suppose what you're talking about then is बंदे थे Aristotle. ये phase 4. बिल्कुल. हाँ जी. Aristotle was extremely concerned with excellence, right? And he would often say कि यार देखो, excellence in a person is not an act. So say you make one DVC really good, really well, हाँ? तो उनका कहना है, उनका मानना ये था कि excellence isn't that you've made one TVC really, really well. Excellence is that you become the sort of person or the sort of thing who makes excellent TVCs. So you just become that person. Aristotle वाली बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है. But anyways, so you own your own production house, you said, right? जब बारिशें पड़ी थी, you were making incredible drone footage. अच्छा, that was not for any particular. No, that was just you being. That was just me, you know. Yeah. अच्छा हुआ ये कि हमारे घर में लाइट चली गई थी 5 दिन के लिए. सही. There's nothing to do. No. अच्छा, ड्रोन के 2 बैटरीज हैं और उसमें चार्ज है 20 मिनट के लिए, वो चार्ज होती है उसकी मतलब you can use it for 20 minutes. Okay. उसके बाद खत्म. Which one do you have? I have the Mavic Pro. Okay, all right. The first one, the छोटा वाला जो आया था. सही. अच्छा, अब 5 दिन हो गए, लाइट नहीं है और everybody is sort of मतलब होता है ना कि बस सब दीवार में सर मारने वाले सारे. यूपीएस की लाइट, मतलब कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा. तो अब हुआ ये कि वेयर आई लिव, हमारे घर के सामने देयर वाज दिस जो खैबान शहबाज है, वहाँ पे वी हर्ड ऑफ स्टोरीज के यार गाड़ियाँ बहुत बंद हो रही हैं. तो अच्छा, हिम्मत तो नहीं हुई घर से बाहर निकलने की कि यार कैसे कहाँ जाएंगे, क्या होगा. तो अच्छा, मेरे अब्बू, हम लोग छत पे बैठे हुए थे, अब्बू ने कहा कि यार ड्रोन से जरा चेक तो करें क्या है बाहर, हालात क्या है. कूल. दैट्स लाइक फाइनली यस. तो मैंने कहा चलो चेक करके देखते हैं. तो फिर हुआ ये कि एक होता है ना स्काउट मिशन आप कह लो जी, तो वो एक स्काउट मिशन था. वी जस्ट यू नो ड्रोन उड़ा के देखा कि भाई मोहल्ले में क्या हालात हैं. अच्छा, लाइन से गाड़ियाँ बर्बाद हैं, पड़ी हुई हैं, ये वो है. तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ दैट जो बारिश की आप बात कर रहे हो. तो that's cool. Is that your general inclination as well, to be more rugged, to be more like I said before, to be more guerrilla in this way? Definitely. Just go into the field and like figure it out once you're there. Yeah. तो होता ये है कि अब it depends on the project as well. For example, आपकी कोई proper actual script based storyboard based आपकी TVC है ना,
तो आपने उसी के हिसाब से फॉलो करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये जो मैं देख रहा हूँ मुझे इसको रेप्लिकेट करना है. सही 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 सही. तो उसका काम अलग तरीके से होता है. Of course, yeah. और अगर आप गुरिल्ला फिल्म मेकिंग की बात करो तो उसमें ये कि आपको पता है कि मैंने एंड प्रोडक्ट मुझे ये चाहिए एंड आपके पास ये सराउंडिंग है, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं. अब आपको एंड प्रोडक्ट इन चीज़ों से निकाल के लाना है. सही. अब ये आपकी हाँ, साइंस है, अब आप मुझे नहीं कैसे पता. करो नहीं हाँ. करो आपका मसला है. सही. सो आई एम मोर टूवर्ड्स दैट सॉर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. Sure. तो इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट फीचर फिल्म. Oh wow, all right. तो Yeah. उसमें वी शॉट दिस इन नियर K2. Which I shared as well. Yeah. Yeah, Yeah. Talk about that, dude. That's awesome. Yeah. Dude. तो उसमें ये हुआ था कि अच्छा दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ इट्स काइंड फ्रॉम पाकिस्तान जो वहाँ पे अभी तक शूट हुआ है. इससे पहले देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी फिल्म क्रू गोइंग देयर, यू नो, शूटिंग कंटेंट, व्हाटएवर कंटेंट. मतलब नॉट ओनली What's it called? it's called Beyond the Wetlands. Beyond the Wetlands. That's the name of the film. Muru did some vlogging stuff, but you're talking about an actual film. Actual crew. feature film, 1.5 घंटे की मूवी की मैं बात सही कर रहा सही सही सही. हूँ. And we shot this in -27. Fuck. और आपका जो कैमरे का टेम्परेचर होता है ना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दैट्स 0. 0 से नीचे जाओगे कैमरा बंद हो जाएगा नॉर्मली. कौन सी कैमरा थी ये? हमारी थी GH5. GH5 क्या होती है? Panasonic Panasonic. GH5. Okay. तो जो हर मैन्युफैक्चरर का एक होता है ना कि यार ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, हर डिवाइस की होती है. Optimal operating. ऑप्टिमल नहीं, बस नॉर्मल ऑपरेटिंग. इससे कम में जाओगे तो आपका मसला है, आपका हेडेक है. सही. तो सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, व्हाटएवर जितने भी आप कैमराज में जाओ Yeah. उनका होता है 0 में वो कैप लगा देते हैं. ठीक कहते हैं इससे नीचे आप गए तो आपका हेडेक है, कैमरा बंद हुआ चला, हमारा मसला नहीं है. There's no warranty, there's no There- guarantee, there's हाँ. nothing. Huh? सो आई डिड सम रिसर्च किया विच कैमराज आर मोर लीनियंट टू कोल्ड वेदर, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है. Okay. तो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च पता चला कि GH5 इज़ वन ऑफ दोज कैमराज जो वेदर प्रूफ है. वेदर प्रूफ प्लस फ्रीज प्रूफ. Freeze proof. या तो ये होता है कि फ्रीज प्रूफ में की कहानी ये होती है कि इवन इफ इट फॉल्स इनटू द स्नो, अंदर कहीं पे स्नो नहीं जाएगा. Wow. बट बैटरी की कोई गारंटी नहीं होती. बैटरी का जो इलेक्ट्रॉन्स और वो पूरा जो प्रोसेस है दैट फेल्स 0 से नहीं. सब 0 में आप गए तो वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया. सही सही. तो अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी मोबाइल है या कोई भी एनीथिंग दैट हैज़ अ बैटरी, अगर आप 0 से नीचे जाओगे उसकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है. तो यही हुआ हमारे साथ भी. कैमरा तो हमारा सही काम हो गया उससे, बट बैटरीज ने तो ऐसा माशाल्लाह से हमें तंग किया. So this is a cinema camera as well. GH5. दिस इज आई वुड से सिनेमा तो नहीं कहना चाहिए, Pocket cinema. पॉकेट कह लो आप, पॉकेट सिनेमा Pocket कह लो, cinema, मतलब TVCs बनती हैं इसके सही ऊपर. सही सही सही. तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कैमराज इस फॉर्म फैक्टर में जो कि 4K जिसने ऑफर किया था. All right. Yeah. Okay. And batteries ने आपको थोड़ा सा रुलाया है. थोड़ा सा जी. क्या बात कर रहे हो. थोड़ा सा ही रोते मर्द हैं हम आखिर. तो हमारा पर्टिकुलरली मसला ये हुआ था कि अच्छा यू आर इन -27 Yes. and you are about 50 kilometers away from the nearest civilization. Sure. Yeah. पहाड़ है, स्नो है और बस आप हो. तो अब इवन इफ लेट्स से वन ऑफ योर बैटरीज फेल्स या कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, आपको अब ट्रैक करके जाना है 1 घंटा पीछे Yeah. सिविलाइजेशन में. Yeah. वहाँ पे अगर लाइट हुई तो चार्ज हो जाएगा, नहीं हुई तो. लाइट नहीं हुई तो फिर आपका दिन ज़ाया. सही. So we shot the feature in about 16 or 17 days. और इसमें इस तरह हुआ था कि we had a basic concept, we had a basic idea कि this is the end result that we want. Okay. बट वी डिड नॉट नो कि यार हमें ये करने के लिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या लाइटिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, जो पूरी जो इक्विपमेंट होती है. तो वी डिसाइडेड कि यार वहाँ पे ना जनरेटर मिलेगा, ना वहाँ पे एक बिजली होगी, क्योंकि वहाँ लोकल्स के पास भी एनर्जी सेवर भी मुश्किल से चलते हैं, वहाँ पे इतना वोल्टेज का इशू होता है. तो हमने कहा कि यार ओनली नेचुरल सनलाइट, नो लाइट्स, नथिंग आर्टिफिशियल, नेचुरल सनलाइट हुई हमारे पास इफ़ अवेलेबल, बिकॉज क्लाउडी का भी सीन होता है. इफ इट्स क्लाउडी देन दिन ज़ाया हो गया. सही. तो हमने इस तरह डिवाइड किया था कि हमारे कुछ शॉट्स थे जो कि क्लाउडी वेदर में थे, कुछ थे जो कि सनी वेदर में थे. ठीक है. एंड इस तरह था कि व्हेनेवर जो भी जिस दिन हम उठे हैं जैसा वेदर है उस दिन के हिसाब से हम वो शॉट कर रहे हैं. सही. राइट. तो इस तरह वी शॉट द एंटायर थिंग विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट. That's something, dude. That's really something. या अच्छा इसमें you could say this is a good thing or a bad thing depending on who you ask. Okay. If you ask any seasoned filmmaker कहीं से पूरी दुनिया में से कहीं पे, वो कहेगा यार ये इस तरह की मूवी नहीं बनती. सही है. However, have you seen the movie उसका लियोनार्डो का था The Revenant? Yeah. I think it also won an Oscar for best cinematography. I know of it. I haven't watched it. I know. I highly recommend it. Okay. Do alright, watch yeah, it. Do yeah, watch it. yeah, absolutely. उसमें जो आपका DOP है, the guy who operates the camera, he shot the entire thing without any light. उनका भी यही था कि उन्होंने आर्टिक टंड्रा में कहीं पे किया था और बिल्कुल विंटर वेस्टलैंड में सारी मूवी शूट हुई है विद नेचुरल लाइट.
and that movie won an Oscar for best cinematography. I Alright. think I might be mistaken, Oh, yeah, but it was very well received by Yeah, the audience. I know that. Yeah, I know that. It was very well received. I did Yeah. not at all know. Because you just assume these things. ना कि Yeah. इनके पास तो professional lighting वगैरह होगी. हाँ. Because it looks so good. And I haven't had the chance to watch yours yet. But जो उसका trailer था. अभी तो वो काफी उसमें पोस्ट करने का काम चल रहा है, हाँ. तो it's not ready yet, but Yeah. when it is, I'll definitely, you know, I think that'd be let you know. awesome. उसमें आपका acting का भी थोड़ा सा A bit just- cameo just appearance मेरा भी flex, है. थोड़ा सा कि यार मैं actor भी हूँ. How did you finance the whole thing yourself? How Yeah. did you? Initially, अच्छा, let me rewind to 2017. Yeah, when you've quit your job. I now. quit my job. Okay, yeah. अच्छा, when I quit my job, तो ये था कि I did not have any other job lined up. यार अब थोड़ी अच्छा. सही है, I just quit on my, you know, कहते हैं intuition कि यार नहीं, बस मैंने करना है, कुछ और करना है, I don't know कैसे करना है, बस करना है. Yeah. I quit my job, घर वाले कह रहे थे पागल हो गया ये. Yeah, that's what I was going to ask you. All these erratic decisions, Yeah. all of these, and what are your parents saying? My yeah? parents were like यार तुम क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी कंपनी है, मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, क्या मतलब And पागल हो. like माशाल्लाह से सेट की तरफ जा भी रही थी ना. हाँ, You just made अल्हम्दुलिल्लाह, the TVC. अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah. Yeah. जी जी, तो हुआ ये कि I quit my job और फिर there was a period of 2 to 3 months जब मैं घर में बैठा रहा. सही है, घर पे बैठ के बस I would just think about कि यार अच्छा मैंने ये तो करना है, मैंने फीचर फिल्म बनानी है, but how do I do it? Where do I start? Sure. तो पता ये चला कि पता नहीं क्या, मतलब आई जस्ट फिगर्ड आउट कि इस तरह करना चाहिए कि छोटे से स्टार्ट करते हैं. फीचर तो एंड गोल है ना, तो व्हाट कैन आई डू नाउ दैट विल इवेंचुअली लीड मी टू दैट एंड गोल. Okay. तो इस तरह हुआ कि आई फोकस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्रीज एज अ होल. अब डॉक्यूमेंट्रीज में ये है कि जो इनोवेशन की हमने बात की ना, द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री आई मेड एवर वाज अ शॉर्ट 5-minute डॉक्यूमेंट्री, एंड जिस कंपटीशन में मैंने उसको भेजा था, इट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन अमंग 2000 एंट्रीज. Wow. Local Pakistan. पाकिस्तानी. Okay. All right. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉन. Okay. डॉन प्लस उनका एक काउंटर पार्ट है, जर्मन न्यूज़ चैनल है DW के नाम से. Okay. तो इट वाज अ को क्या कहना चाहिए, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉन एंड DW. Joint venture. Joint venture कह लो. Same. तो अच्छा, उसमें ये हुआ था कि दे जस्ट सेंट आउट दिस ब्रीफ टू एवरीबडी कि यार whoever wants to participate, no entry fees, nothing, आप बस बनाओ, अगर हमें अच्छी लगी तो फिर आप जीत जाओगे, ये आपका एक्स अमाउंट, आपको 5 लाख फर्स्ट प्राइज मिलेगा. Then something needs to be said about the way Dawn has done these things. They have They have, inspired quite हाँ, a few definitely. creators like yourself. No? Definitely, माशाल्लाह. definitely. हाँ, बराबर, हाँ. हाँ, तो हुआ ये कि अच्छा, जब हम लोग आपस में दोस्त लोग डिसाइड कर रहे थे, सो वी इनिशियली थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है. नॉट नोइंग कि हमने करना क्या है, बस हमने कंपनी बनानी है, सही है. इवेंचुअली हमने फीचर फिल्म बनाना है. सही है. तो फिर ये हुआ कि हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, चाय पे बैठते हैं लौंडे बैठ के बस डिस्कस कर रहे थे, अच्छा ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. सही. तो अराउंड दैट टाइम डॉन का आया कि भाई वी वांट डॉक्यूमेंट्री एंड द फर्स्ट प्राइज गेट्स. Did they specify what kind of documentary? On? दे हैड अ बेसिक क्या कहना चाहिए, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट नीड्स टू बी देयर, मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए एंड कोई एम्पावरिंग कुछ होना चाहिए एंड इस तरह. सो वी डिसाइडेड कि यार अच्छा इससे हम पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ. And what did you guys decide you were going to make this on? अच्छा, our documentary was based on this woman in Punjab who is a farmer and she single-handedly, you know, उसकी शादी हुई थी, then मियाँ का फालिज हो गया and then he got paralyzed and you know बहुत मुश्किल से उसने अपनी लाइफ सेट की. हाँ. तो she was the protagonist of our documentary. Right. Okay. अब हुआ ये कि one of the guys who in our team, he said कि यार अच्छा I know this person, मेरे गांव में एक फलां, मैं जब बचपन में रहता था तो एक फलां इस तरह एक खातून थी. I don't know if she's still doing that or not, but एक आइडिया है, Okay. तो let's make something on her, let's make a documentary on her. Okay. अच्छा, अब when was the last time you met her? या 20 साल हो गए होंगे. Okay. जी. जी अच्छा, बिल्कुल. चलो ठीक है, हो गया. Sounds like a good idea. अच्छा, कहाँ पे है ये? पंजाब में. पंजाब के किसी मुल्तान के बहुत आगे किसी एक छोटे गांव में. अच्छा, फ़ोन नंबर या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. गाँव जाना पड़ेगा. गांव जाना पड़ेगा. अच्छा, हमने कहा कि यार क्या करें. अच्छा, देयर आर अबाउट 10 days लेफ्ट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्री. जो लास्ट डेट उसका है 10 दिन रह गए. Jeez, dude. ठीक है. Alright. और दिस गाय जो द फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड कि यार अच्छा हमारा प्लान ये था कि आप किसी से बात करवा दो कि उनको पता हो कि हम आ रहे हैं, कम से कम पता इतला हो. कुछ तो हो ना कि यार हम सामान लेके जाएं, पैसे खर्च होंगे, 10 चीज़ें होंगी, वहाँ रहेंगे कहाँ पे, ये वो. तो पता तो हो कि वहाँ जाके हम टाइम ज़ाया नहीं करके आ रहे हैं. सही. उसने किया, मैंने बात करने की कोशिश की है बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, और बट जाके हो जाएगा, जब हम जाएंगे तो एक दफ़ा कहानी हो जाएगी.
अच्छा भाई चलो बिस्मिल्लाह करके जाते हैं. अच्छा, the rest of you agreed. You're like, हाँ बस क्या करें. अच्छा तो वी वेंट टू पंजाब और अच्छा दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग. उस बंदी को भी नहीं पता कि हम लोग क्यों आए हैं उससे मिलने, okay. जो खातून है. हाँ, वी टोल्ड हर कि यार हमें इस तरह डॉक्यूमेंट्री बनानी है. उनको वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो दे डिड नॉट नो कि डॉक्यूमेंट्री होती क्या है. हमने कहा यार एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरह होगा, आपके काम के बारे में हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई खातून वुमेन एम्पावरमेंट जो है कितने रूरल एरियाज़ में किस तरह हो रहा है. माशाल्लाह. तो उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब मैं करूँ क्या. हमने कहा आप बस अपना काम करें जो आपका नॉर्मल एवरीडे आपके एक्टिविटीज़ होती हैं फार्म्स में, एंड आफ्टर दैट इज़ डन वील टेक अ शॉर्ट इंटरव्यू. Okay. बस ये आपने यही करना है. बस. उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. पहले तो उनका ये था कि नहीं कि ये पर्दा का जी. बड़ा एक होता है. जी. तो हमने भी कहा कि यार नहीं वी डोंट हैव एनी इल थॉट्स अबाउट कि हमने क्या दिखाना नहीं दिखाना. वी जस्ट वांट टू शो वुमेन एम्पावरमेंट एज अ होल. तो आप पर्दे का बेफिक्र रहें, जो आपके नॉर्मल कपड़ा होता है आपने उसी में काम करना है. वी डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट यू इन एनी वे या कुछ इस तरह हमने नहीं करना. तो उन्होंने कहा ठीक है. उनके जो हस्बैंड साहब जो थे वो बेचारे मतलब उनको फालिज का वो था, बट ही स्टिल वांटेड टू मेक श्योर कि वी आर नॉट शूटिंग एनी कंटेंट दैट ही डज नॉट अप्रूव इवेंचुअली, बिकॉज वो गांव का एक होता है. जी. तो खैर वी डिड द डॉक्यूमेंट्री. अच्छा करके आ गए. अब 7 दिन रह गए. 3 दिन में वी शॉट द डॉक्यूमेंट्री. अब 7 दिन में एडिट भी करना भेजना भी है. शॉर्टलिस्ट बनी हुई थी व्हेन यू गॉट देयर? नहीं भाई नहीं, क्या नहीं, बात अच्छा, कर. shortlist. नो शॉर्टलिस्ट, नो स्क्रिप्ट, नो नथिंग. बस हमारे पास इक्विपमेंट है और हम वहाँ खड़े हैं और हम एक वो क्या कहते हैं वीट फार्म होता है ना जहाँ पे हाँ. गंदम उगते जी. हैं. गंदम के फार्म उसमें फील्ड में हम खड़े हैं और वो सामने अपना वो काम कर रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं. What? मतलब सर पैर नहीं था कुछ इसका कि भाई कहाँ. What did you shoot it on? वी शॉट दिस ऑन आई थिंक कैनन का कोई DSLR था. All right. कैनन का All right. DSLR में All right. वन ऑफ द वेरी बेसिक DSLR जो होते Okay. हैं. तो खैर वहाँ पे जब हम आ गए ना तो जब हमने पूरा 3 दिन का काम कर लिया तो इंटरव्यू में वी डिसाइडेड अच्छा वी कैन. इंटरव्यू भी किस तरह. नॉर्मली इंटरव्यू में ये होता है ना कि द इंटरव्यूअर हैज़ अ बंच ऑफ क्वेश्चन Sure. Yeah. एंड फिर आप उससे पूछते हो और फिर आप उनको बताते हो. हमें ये भी नहीं पता यार सवाल क्या पूछे इनसे, मतलब कभी किया ही नहीं है. तो हमने कहा अच्छा आप बस ना शुरू से आखिर तक अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं. ये कैमरा है, ये माइक है, आप बस अपने बारे में बताएं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. सही. तो उन्होंने ऐसे ही किया. वो शुरू से चलती गई. वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 40-45 मिनट का उन्होंने अपना पूरा बयान दिया. अब वापस आके 7 दिन में उस 45 मिनट में से मैंने पिक एंड चूज़ करके निकालना है. एक स्टोरी बनानी है, एक नैरेटिव बनानी है. सही. और फुटेज तो मैंने शूट किया हुआ था सारा वहाँ पे. अब 7 दिन के अंदर वी एडिटेड द वीडियो इन आई थिंक 3 or 4 days. सबमिट कर दिया. अच्छा सबमिट के बाद हमने ये आपस में बोला कि यार कि पूरा पाकिस्तान से कितने बड़े बड़े लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा. हम कौन है, हम कौन है, मतलब हमें कौन जानता है, हमारी औकात क्या है. तो हो गया, सबमिट हो गया. सबमिट किया आई थिंक 20 days और 25 days लेटर उन्होंने कॉल की डॉन वालों ने कि भाई कंग्रेचुलेशंस यू गॉट द फर्स्ट प्राइज़ और इस तरह आप 5 लाख रुपए आप जीत गए. अच्छा आर यू श्योर. ऐसा हमने गलती से किसी और को नहीं कॉल कर दिया आपने. तो उन्होंने कहा नहीं भाई योर वाज द बेस्ट एंट्री. अच्छा इन दैट डॉक्यूमेंट्री जो क्या कहते हैं फेस्टिवल जो था देयर वर 4 जजेस. उनमें से एक जामी, एक बाबर शेख और 2 एक डॉन की अपनी एक थी और एक जर्मन जो चैनल था उनका एक डॉक्यूमेंट्री के जो हेड होते हैं वो थे. That's crazy, dude. अच्छा जामी इज़ माई क्या कह लो आइडल कह लो आप. Sure. He's one of the बचपन से best. मतलब Yeah. आई रिमेंबर स्ट्रिंग्स की कोई म्यूजिक वीडियो से ना मुझे पता चला था इनके बारे में. सही. तब से मैं उनका फ़ैन हूँ बचपन से. मतलब जब मैं आई थिंक 10-11 साल का था. सही. एंड यू नो अच्छा ही सेड कि दिस उनका जो फीडबैक था उसके दिस इज़ द बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल द एंट्रीज. Of all 2000 एंट्रीज. All right. और जब वो अच्छा इसके एक आर्टिकल आया था इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी फीडबैक एंड ऑल द जजेस का जो रिव्यू था. आप यकीन करो वो जब मैंने पढ़ा ना मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए. मैं कहा यार दिस गाय इज मतलब जिस बंदे की मैं इतने बचपन से मैं देख रहा हूँ वो मेरे काम की तारीफ कर रहा है. एंड ही इवन गॉट द टाइम टू वॉच व्हाट आई हैव मेड. तो वो अल्लाह के मतलब वही बात है अल्लाह ने बहुत मेहरबानी करके अल्लाह ने डॉक्यूमेंट्री बनवा दी. अच्छा फिर डॉक्यूमेंट्री के बाद आई मेड अ फ्यू मोर डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सम अदर टॉपिक्स एज वेल. फिर ये हुआ कि लास्ट अगस्त 2020 के अगस्त में आई वाज वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर द टॉक्सिक ब्यूटी कल्चर ऑफ पाकिस्तान. ख़वातीन को लेके. Alright. Serious. हाँ इट्स येट टू बी एड. अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई. हो लेकिन सही है ना. हो जाएगी. हो जाएगी हाँ इंशाल्लाह. इट्स फॉर दिस जर्मन ब्रॉडकास्टर. तो फिर वो इट्स
इट्स अ सीरीज ऑन साउथ एशियन कंट्रीज जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को अलाइन करके एक सिंगल उसमें दिखाया जा रहा है. तो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. हमारा काम था वीडियो शूट करके उनको भेजना. तो आई रिमेंबर, अच्छा दिस इज़ 2020 की बात मैं बता रहा हूँ. आई रिमेंबर हम लोग शूट कर रहे हैं और मैं अपने दोस्त के साथ में, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, आई एम टेलिंग हिम कि यार हमने ये स्टार्ट किया था फीचर फिल्म बनाने के लिए. दैट्स व्हाई वी गॉट इनटू दिस होल बिजनेस. तो व्हाई आर वी स्टिल डूइंग दिस? व्हाई आर वी स्टिल मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज? सही. तो हमारा एक जनरल होता है कि यार आप अभी फीचर की बात कर रहे हो यार, क्या बात, मतलब कहाँ पहुँच गए? आसमानों में ख्वाब देखना अच्छी बात है, बट हाउ कैन यू नो, मतलब इतने जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है. ये एक जनरली एक है ये यहाँ पे. But that's an old notion as well, ना? Aslan, how old are you? I'm 27. So I'm 28, right? हमारी जो generation है ना, we are generally beholden to our parents' generations. We are. और कभी आप इनकी generation अगर देखो ना, जो 21-22 साल वाले जिनको आप Gen Z बोलते हो, they aren't. तब इसी जिसकी वजह से आप खैर you are quite rugged and you are quite माशाल्लाह से you are quite courageous in how you've pursued your dreams. लेकिन आप फिर भी देखोगे you're slower than them. Definitely. You're not slower than them because you're not as intelligent. You're slower than them because you want validation from people who don't have that validation to give you. Plus, one more thing to add to what you're saying. There's this concept of Moore's law in the computing world. Okay. Moore's law ये कहता है कि every 2 years, every few amount of years, I'm forgetting the number of years, the processing power of all the computers in the world doubles. Okay. सही है. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 90s का आप कोई कंप्यूटर उठाओ और आप उसको कंपेयर करो विद कंप्यूटर फ्रॉम 92 या 95, वो डबल से ज़्यादा होगा. Yeah, destroys it. सिमिलरली 98 का कोई आप कंप्यूटर उठाओ, वो उससे भी तेज़ होगा. तो ये जो हमारे जो जनरेशन गैप जो अभी आ रही है, इसमें भी यही अप्लाई होता हुआ मैं देख रहा हूँ. जितने अब यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं ना, दे आर डूइंग थिंग्स मच फास्टर Much quicker. एंड मच बेटर एज वेल. क्योंकि Better से ज़्यादा bro, they're so willing to just like you're an anomaly in our generation. You माशाल्लाह, चलो अल्लाह ने करम किया. You're not in theirs though. ये सब वही उतरे हुए हैं, ये सब वही कर रहे हैं. You know what I mean? It's just, it's heartening to see. It really is heartening to see कि ये कैसा है. मतलब बहरहाल, so feature film. Yeah. So ये हुआ कि ड्यूरिंग दैट डॉक्यूमेंट्री शूट हमने डिस्कस किया कि यार अच्छा ये हम करने के बाद हम फीचर में अब काम कर रहे हैं. सही. आई डोंट केयर नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, वी आर नॉट डूइंग इट. But you were doing good work with the documentaries as well. अच्छा हमारा इस तरह है कि वी कहते हैं ना कि टू अचीव योर ड्रीम्स यू हैव टू फर्स्ट सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली एज वेल टू रीच देयर, टू बी एबल टू डू इट. तो हमारा माइंड, हमारी कंपनी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि प्रोजेक्ट्स उठाते रहो, काम करते रहो, एंड देन यूज दैट फंड टू इवेंचुअली फंड योर ओन ड्रीम्स, जो पैशन प्रोजेक्ट्स आपके हैं. तो फीचर के लिए वी इनिशियली अप्रोच्ड अ बंच ऑफ अदर इन्वेस्टर्स. इन 2017 मेरा फर्स्ट ट्रिप लगा था टू K2 बेस कैंप. सही है. अच्छा इन दैट वो कोई इसमें फिल्म के हवाले से नहीं, बस कि जनरली अच्छा वहाँ पे जब मैं गया तो मैं कहा यार हम लोग पागल हैं कि वी हैव सच अमेजिंग लोकेशंस इन आवर कंट्री एंड वी आर डूइंग नथिंग विद इट. सो मैंने उसी ट्रैक पे मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार वी हैव टू मेक अ फिल्म हियर. कैसे आई डोंट नो, बट इवेंचुअली हमने करना है. सही. तो तब से 2017 से लेके 2020 के अगस्त तक मेरे माइंड में ये था कि यार हमने इसको काम हमने फीचर हमने जो फर्स्ट फीचर हमारी होगी वो यहाँ पे होगी इंशाल्लाह. ओके. इन द मेन टाइम वी अप्रोच्ड अ बंच ऑफ इन्वेस्टर्स कि भाई हमने ये करना है तो आप पैसे लगाएं, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है यहाँ पे. उन्होंने कहा ठीक है भाई, वेरी गुड, अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये है वो है, क्या आपकी स्टोरी क्या है. तो हमारी स्टोरी इस तरह, इनिशियल जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी वाज अबाउट अ वुमन हु गेट्स लॉस्ट इन द माउंटेन्स एंड शी हैज़ टू सर्वाइव. ओके. जॉनर वाज एडवेंचर सर्वाइवल. तो पाकिस्तान में इस तरह कुछ बना नहीं, हमने कहा यार अच्छा चैलेंज है, कर सकते हैं. अच्छा ये हमने आइडिया पिच किया, वो कहते हैं वेरी गुड यार, K2 के सामने आइटम नंबर करते बड़ी अच्छी लगेगी. दिस इज द फर्स्ट थिंग ही सेड. Just shoot me in the eye right now. अच्छा हम लोग शक्ल देख रहे हैं यार, ये बंदा इसको शायद हमारी बात समझ में नहीं आई या कोई गलत बात बोल दी. मतलब व्हाट क्या सर्वाइवल फिल्म में आइटम नंबर, एक आइटम नंबर K2 के सामने, मतलब just the logistics. I was just stunned कि यार ये बंदा क्या कह रहा है. अच्छा हमने कहा नहीं है सर, हमारे इसमें कोई आइटम नंबर का कोई सीन नहीं है, वी डोंट वांट टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन एट ऑल, हमारा वो रोल नहीं है. उन्हें अच्छा आप मुझे कोई मिसाल दें, आप क्या बनाना चाह रहे हैं. ऑफ जीरो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. नहीं है. मैंने कहा आपने अगर 2 मिनट की गेम खेली हो लारा क्रॉफ्ट,
लारा क्रॉफ्ट की जो अभी जो नई सीरीज आई PS4 में आई थिंक, जी 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 शैडो ऑफ द टॉम रेडर, राइज ऑफ द टॉम रेडर, या उसकी मैंने उसको मिसाल दी बिकॉज वो बंदा थोड़ा गेमर भी था. ठीक है. मैंने कहा यार मैंने इस तरह का कुछ करना है हाँ. इन पाकिस्तान Yeah. विद अ पाकिस्तानी क्रू विद अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस. या ब्यूटीफुल गेम बाय द वे दैट. Yeah, definitely. हाँ, yeah. तो अब इवन मतलब सारी चीज़ें मैंने प्लेट पे रख के दे दी, वो बंदा कह रहा है कि यार पाकिस्तान में आइटम नंबर नहीं हो तो मूवी तो नहीं चलेगी. ये आप गलत बात कर रहे हो. मैंने कहा अच्छा. फिर वी इवेंचुअली डिसाइडेड कि यार कोई फ़ायदा नहीं है टू कन्विंस एनी जो नोटेबल इन्वेस्टर्स कि हमें हमारे साथ चलें. फिर ये बात मैंने की जामी साहब से, उनके साथ भी मैंने आई वर्कड ऑन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स टुगेदर. ओह कैजुअल ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स. नहीं तो वेरी गुड, मतलब जो कहते हैं ना मेंटर टाइप बंदा जो होता है बहुत अच्छी तरीके से ही कम्स डाउन टू योर लेवल एंड आपको अपने आपकी ज़बान में समझाते He हैं. just has a big heart like that. वेरी मतलब बहुत आई वुड से कि like there's this saying कि never meet your heroes. Sure, yeah. It doesn't apply here. No. Yeah, because जो मैंने जो सोचा हुआ था ना कि यार ये बंदा even though I never met him but उसके काम से पता चलता है ना बंदे की पर्सनालिटी क्या है. Sure. He was so nice यार, मतलब इतने अच्छी तरीके से गाइड किया उन्होंने and मतलब he just took me in with open arms. Dude, that's beautiful. Yeah, That's तो fucking बहुत I beautiful, would yeah, मतलब You don't get a lot of that. Yeah, you don't. Not in here, not in Pakistan. बल्कि कहीं पे भी नहीं होता. नहीं. पूरे दुनिया में आपको कहीं इस तरह बंदा नहीं मिलता. तो बड़े अच्छे उन्होंने हमें गाइड किया. तो ये बात मैं उनसे कर रहा था. हाँ. उन्होंने कहा कि भाई देखो, if you want to make something that is unique, that has never been done before, तो आप इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाओ, बिकॉज उन्होंने वही काम उसी में पैसा लगाया ना जो पैसा बना के जो बिकेगा. सही. जो बिकेगा. सही. दे हैव नेवर सीन सच अ कंटेंट जो आप पिच करो टू मेक मनी लोकली. ये लोकली डिमांड ही नहीं है ऐसी चीज़ों की. सही. तो अब मेरा सवाल ये था कि यार डिमांड इसलिए नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग दैट एग्जिस्ट्स. हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा, पढ़े लिखे काम के अलावा, जो एक बंदा सखर के किसी एक जगह में मैकेनिक है, उसको क्या पता लारा क्रॉफ्ट क्या है, उसको क्या पता टॉम रेडर क्या है. यानी आप सही बोल रहे हो, लेकिन पता है क्या, आई वुड अनफॉर्चुनेटली हैव टू डिसएग्री. ताबिश हाशमी does a brilliant show, to be honest. Definitely, on right, phenomenal, right? His presence, his cadence, his delivery, how quick he is, and the kind of humor he brings now. matlab, it's all phenomenal, right? And he's at the who's who of guests as well. उसका भी जो है ट्रेंडिंग नंबर 1 पे कौन सा वाला है? मथुरा. मुझे बताओ ना क्या है ये? You know what I mean? And I have all the love for Mathira. 1 million views in one day. Mathira is great, right? I have phenomenal. Mathira is phenomenal, right? But the reason why it's doing that, it's trending like that, is not because of the fact that she's phenomenal. That's the problem, right? Behral, sorry. Yeah, तो फिर इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि यार हमने खुद ही फंड करना है इसको. Yeah. खुद फंडिंग करके we'll see what happens. सही. तो इनिशियली हमारा प्लान था कि वंस वी वर डन विद द ट्रेलर एंड एवरीथिंग, तो हम इसको जो फर्स्ट कट होगा फिल्म का वो हम भेजेंगे फिल्म फेस्टिवल्स में बाहर, एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस. क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी फॉर डॉन, दैट वी आल्सो सेंड दैट टू अ बंच ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स अब्रॉड. वी सेंड इट टू अबाउट 80 फिल्म फेस्टिवल्स एंड 120 अवार्ड्स. Wow, that's not a bad percentage. Yeah. सो अच्छा, उसके बारे में आपको बताऊँ थोड़ा सा. हाँ. न्यूयॉर्क पे there's a film festival called अथीना फिल्म फेस्टिवल. Okay. वहाँ पे जब ये सिलेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि यार आप आ जाएं, अच्छा काम. न्यूयॉर्क आ जाए. बस आ रहे हैं आप, चलो अब आते तो है अभी. तो अच्छा सिलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया. मैं कहा हमने वो डिसाइड किया कि यार जाना तो चाहिए. Do they help you with the passport visa? Yeah, they do help you with the visa. मतलब इन्विटेशन भेजते हैं, फिर आप अप्लाई करते हो, फिर आपका हो जाता है. न्यूयॉर्क पे जब गया तो अच्छा, आई डिड नॉट नो वहाँ पे होगा क्या, कौन होंगे. Just the experience, right? और आप देखते हो ना कि यार आप आर्टिकल पढ़ ले तो अच्छा फिल्म फेस्टिवल ये होता है. वहाँ पे गया तो सामने खड़े जे एब्रम्स, वहाँ पे खड़ी है रेचल वाइस, और उसमें उस फेस्टिवल में आई हुई वो कौन सी मूवी थी, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, जिसमें मार्गो रॉबी और सरशा रोनन होती है. उसका वहाँ पे वो था, प्रीमियर था या समथिंग उस फेस्टिवल में. तो इट वाज अ 3-day फेस्टिवल जहाँ पे अच्छा फिल्म फेस्टिवल के बारे में एज अ होल में बताता हूँ. होता है ये इट्स लाइक एन एक्सपो, जहाँ पे जितने भी दुनिया के फिल्म मेकर्स हैं वो अपना काम लेके आते हैं और इन्वेस्टर्स भी आते हैं. सो इफ एनीबडी लाइक्स, लेट्स से नेटफ्लिक्स लाइक्स व्हाट दे आर वाचिंग, तो वहीं पे बात डील होती है और फिर वहाँ पे डन हो जाता है. इट्स लाइक एग्जिबिट, वही ना एक्सपो जिस तरह है. एक्सपो या तो आप सारे ये इन्वेस्टर्स आते हैं बिकॉज दे आल्सो नीड कंटेंट,
और जो स्टूडियो बैक्ड फंड प्रोजेक्ट्स नहीं होते, जो इंडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इस तरह अपनी काम को दिखाते हैं लोगों के सामने. सही. तो मार्गो रॉबी और सर्शर रोनन की जो मूवी थी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, अच्छा उसमें वो भी आई हुई थी AOC का पता है आपको? Alexandria Yeah. Ocasio-Cortez. So there was this documentary based on her and 3 other women. Bringing the House Down वाली. Yeah, वही exactly. तो उसका भी प्रीमियर वहाँ पे था. Wow. So I met the director of that film और मैंने उससे ये सारी बात की कि यार होता क्या है, मुझे ज़रा समझाओ. तो सही, वो भी एक बंदी है. हाँ. उसने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया. उसने कहा क्या देखो, what you've brought here is a very good start, but you can't expect Netflix या Amazon to just buy a 4-minute documentary and call it a day. You can't be entitled like that. Yeah. That's तो phenomenal. आपको अगर आना है ना, if you want to actually make some noise, you have to come here with actual feature length content Yeah. that these investors, these streaming services actually want to, play on the ठीक. platforms. ठीक. तो वहाँ से फिर ये पता चला कि अच्छा अब जब नेक्स्ट आना है ना तो फिर बड़े काम के साथ आना है. सही. इंशाल्लाह. तो वही प्लान हमारी चल रही थी कि हम फीचर बनाएंगे, फीचर बनाने के बाद भेजेंगे और वहाँ से we'll see what happens. अल्लाह खैर करेगा. ट्रेलर हमने लॉन्च किया अभी कोई 2 हफ्ते पहले. We were approached by 4 local players, 2 distributors here and 2 streaming services. लेकिन जब आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे तब बात समझ नहीं आ तब रही. किसी को बात समझ में नहीं आ रही थी. अब जब वो चीज़ सामने तैयार होकर आ गई है तो अब सब तैयार हो गए हैं कि हाँ भाई आ जाओ. सही. माशाल्लाह. अल्लाह का करम. अल्लाह का करम है. अल्लाह की बड़े एहसान है इसमें. हमारी क्या औकात नहीं है हमारी, जो सीधी बात है. तो अभी फिर वे जस्ट सॉर्ट ऑफ फिगरिंग आउट कि यार हमने इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, बिकॉज अभी कोरोना का भी सीन है तो सिनेमाज बंद हैं. एंड पहले था कि मिड मार्च से खुलने का प्लान था, बट अब वो भी आई एम गेसिंग वो भी बंद होने वाला है. सो 2 थिंग्स यार. एक तो ये ऑब्वियसली व्हाट जामी भाई सेड एज वेल, you want to have the finances in your hand, right? Yes, because जो आपके investors हैं या जो भी है, they adhere to 2 things. One, कि भाई सबसे ज़्यादा मुझे पता है, which is always false. That's never going to be true, right? Because कैसे आपको सबसे ज़्यादा पता हो सकता है? The other thing is this formulaic understanding of what content is. So content is item number, love story, फिर बिक जाएगा, right? So to, I suppose, combat all of that, you want to go towards Patreon or patronage of whatever sort, crowdfunding, whatever it is. उन सब चीज़ों के लिए भी या उनके अलावा भी you want the proof of concept, which is what you've done now, which is what we're talking about कि यार अब आ रहे हैं. And I suppose somewhere in the middle of all that there is the artist's anger, the artist's indignation कि यार मैंने आपको ये पिच किया था, आप मेरे साथ ये बना सकते थे. अब समझ आ रही है ना बात? तब नहीं आ रही थी. And that rage drives you, right? हाँ, but वही बात है कि this happens everywhere in the sense कि not only in film industry as a whole, नहीं, but हर जगह ऐसे ही होता है. If it's a new product, if it's a new idea, people will always, criticize you for thinking about a new idea. Once it's done, once it's there, फिर पता चलता है अच्छा ये तो ये चीज़ बन के आने वाली थी. सही. खैर इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इन द टेक वर्ल्ड, सही. जब आईफोन लॉन्च हुआ ना 2007, okay. जब स्टीव जॉब्स ने उसको प्रेजेंट किया इन द स्टेज, तो बड़ी हाइप मच गई भाई, ये तो बड़ी कोई टाइट चीज़ आने वाली है. ब्लैकबेरी का जो CEO था, ही सेड कि यार ये कोई नहीं चलेगा, मतलब एवरीबडी नीड्स अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन द फोन, नोबडी विल बाय दिस. ठीक है, बिकना शुरू हो गए. उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हमारे जो कस्टमर बेस है हु आर एडिक्टेड टू कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस, वो कभी नहीं जाएंगे टच स्क्रीन में. ठीक है भाई, देखते गए BlackBerry died. Yeah. Because they failed to innovate. Yeah. Had they been on the same boat as Apple, अभी भी BlackBerry चल रहा होता. Yeah. So when there is a with time ना आपकी innovation जब आती है तो you either adapt or you die off. That's it. There's no third option. There's no third option. हमारे यहाँ पे unfortunately क्या हो रहा है in the film industry और dramas भी कह लो आप, इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज अ होल वही घिसे पिटे आइडियाज़ चल रहे हैं, उसको रिसाइकिल करके न्यू फेसेस के साथ हम वापस दिखाए जा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे जो इनोवेटर्स आते हैं उनको भी मार दिया जाता है. अब कुछ इनोवेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जामी की मैं बात करूँगा. ही मेड दिस फिल्म कॉल्ड मूर. ब्यूटीफुल फिल्म. इतनी खूबसूरत पाकिस्तानी कंटेंट मैंने आज तक नहीं देखा. केक देखिए. केक is a different league. It's a different league. But more I would, मतलब it's at the, कहते हैं ना कि इससे बेहतर मेरे नज़दीक और पाकिस्तानी में नहीं है. इससे पहले कही थी खुदा के लिए. Yes, sure. Very good film. Okay, yeah. उसके बाद I would say मूल. Okay. अच्छा, अब इस तरह का जो कंटेंट होता है ना कि जो अक्सर हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है,
if you go for quality content, it will live on forever. Inshallah. खुदा के लिए is a 14-year-old movie. Yeah. Still quoted, We yeah. still quote it, Yeah, right? yeah. इस साल या 2-3 साल पहले 500 और मूवीज आई होंगी कराची में, पाकिस्तान में. How many movies do you know of? I know पंजाब नहीं जाऊंगी क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया गया. That's it. तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाओगे, इवन दो इट माइट बी रिस्की, बट इन द लॉन्ग रन वो ही चलेगा और लोग उसी को याद रखेंगे. सो हमारा आई वुड से कि अब जो न्यू फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, दे नो दिस एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंगली. मतलब दे आर वर्किंग ऑन कंटेंट. फॉर एग्जांपल चुड़ैल्स की आप मिसाल ले लो. Yeah, sure. Yeah. मतलब ब्रिलियंट सीरीज. आप मतलब I did not expect to be that blown away by the end. Just the things that they're talking about, Yeah. the cinematography, the colors, dude. Yeah, a friend acting. a friend of mine worked in the camera department in that series. Okay. I remember जब वो मुझे बता रहा था ना कि मैं इस तरह एक सीरीज में आ रहा हूँ, कि हाँ ठीक है समझ. अच्छा, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, वो बेचारे का दिल ख़राब हो जाएगा. हाँ. या I just assumed कि हाँ भाई नॉर्मल सा कोई लोकल सा सीरीज होगा for whatever platform. Sorry. When I saw the trailer, the first trailer of Friends, I was like, यार bro ये क्या? You were like मेरा दिल खराब हो रहा है. मतलब इतना हाई बार सेट कर दिया just with the trailer. So I was blown away with the fact कि यार अच्छा अब वो काम भी नज़र आ रहा है that I want to see. सही है. तो मेरा शुरू से यही रहा है कि the content that I make, मैं किसी पर्टिकुलर डेमोग्राफिक के नीड्स के हिसाब से नहीं बनाता. नहीं. I am my own audience. Sure. And मेरा काम शुरू से इस तरह होगा कि I will make content that I want to see myself. Yeah. It's message centered. This is a message. I want to build it on this. सही है. हाँ. Unfortunately अभी तक जो चलता आ रहा था वो ये था कि यार ये हमारे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स हैं. Yeah. हमारी सोसाइटी के बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है. Yeah. तलाक, थप्पड़, अफेयर, लव स्टोरी और देवर और भाभी का इनएक्यूरेट रिलेशनशिप. सही है. सही. Yeah. I kid you not, अभी भी इस तरह के ड्रामे चल रहे हैं. Absolutely. जहाँ पे ये सारी बातें मतलब इस तरह डिस्कस की जा रही हैं या इतना एक्सेप्टेबल इसको बना दिया है कि नहीं भाई हमारी सोसाइटी है ही है, हर घर में ये मसला है. ब्रो देखो ना, एंड दैट्स द प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम फिर वही है कि हमारी जनरेशन स्टिल हैज़ एन आयोटा ऑफ कंसर्न और रिमोर्स फॉर दैट जनरेशन. और जो हमसे छोटे आते हैं वो हमें देखते हैं, बोलते हैं आप लोग स्टूपिड थे. These people will never change. They don't have it in them to change. So they have to go. Right? मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ. जो बड़े लोग हैं मेरे से तो बहुत ही बड़े हैं ना. मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने. But they need to understand कि eventually ये जो बच्चे हैं, they're going to inherit all this. Right? And they're going to do away with you. That's just how it's going to happen, right? बहरहाल. आपके घर में अम्मी आपकी ड्रामा देखती हैं कोई? नहीं. वेरी गुड. She watches the news, which is the biggest drama. अच्छा, I never watch locally produced content. मतलब in the sense कि जो ड्रामे चल रहे होते कभी ज़िंदगी में नहीं देखता मैं. आप अगर PTV का देखो ना पुराने ज़माने का, there was this drama called series called खुदा की बस्ती. Okay. Yeah. There was another Alpha Bravo Charlie. Sure. फिर सोना चांदनी. सही. ये पुराने 80s 70s 90s के ड्रामे. They were entertaining. Yet they were conveying a positive message. And they were future facing ना. Yeah. They were future सही facing. है. Yes. ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं यार वो बकवास है या उसमें तो कोई वो नहीं है. उस ज़माने में कंटेंट इस तरह था, जो क्वालिटी जो है ना उन चीज़ों में वो ये है कि दे मेड श्योर कि भाई हम जो दिखा रहे हैं इसका सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए. Sure. Okay. Right? They were aware of this. They were aware of this. Vast majority of the time. Sorry. मैं एक कोट करूँगा आपको. I'm forgetting the name of the series. Yeah, I think it was a drama. One episode, या मिनी सीरीज इस तरह कुछ था, PTV पे चला था. उसका the concept was कि there is this guy जो बड़ा परेशान है और उससे कोई कहता है कि यार तुम इस फलां बाबा के पास जाओ, ये ना तुम्हारे मसले हल कर देगा. सही. वो कहता है ठीक है. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी हमारे माशरे में ये बड़ा अभी तक चल रहा है, बहुत ऑन अ वेरी बिग लेवल. इतना चल रहा है, आपकी सोच है. अच्छा, तो ये बंदा पढ़ा लिखा होता है और ये जाता है किसी बाबा के पास, पूछता है, बोलता है भाई इस तरह मेरे मसले हैं तो आप इसको ज़रा हल करें. वो कहता है कि मैं तुम्हें एक कागज़ में ना एक नंबर लिख के दूंगा, तुमने इस नंबर को ना रोज़ पढ़ना है. सही. उसमें ठीक है भाई क्या है. अब उस कागज़ में लिखा है क्या, 2 4 4 3 4. ये उसमें लिख के उसने पर्ची में दे दिया. उसने बोला मैं ऐसा क्या करूँ. उसमें बोला ये तुमने पढ़ना है. उसमें बोला कि मैं मतलब ये नंबर पढ़ के मैं मतलब मेरे मसले हल हो जाएंगे, मतलब क्या.
तो फिर उसने एंड में उसमें ये दिखाया कि 2 रकात ऑफ फजर, 4 रकात ऑफ जोहर, 4 रकात ऑफ असर, 3 रकात ऑफ मगरिब, 4 रकात ऑफ इशा। आप जब ये पढ़ोगे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। Alright, yeah. ठीक है, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। Yeah. मतलब yeah. दे ऑलरेडी टुक अ टैबू सब्जेक्ट जो कि Yeah. बाबा के पास जाना और इस तरह की सारी चीज़ें, एंड दे यू नो शिफ्टेड दैट टू अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। Yeah, change the paradigm. हाँ। Change the paradigm, yeah. वो आई वुड से दैट इज द सॉर्ट ऑफ एंगेजिंग कंटेंट दैट एक्चुअली हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। Sure. And that's what you would like to make? एग्जैक्टली, दैट्स माय जो एक होता है ना कि व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू यू नो माय सराउंडिंग्स, When I'm gone. नॉट इवन व्हेन आई एम हाँ। गॉन, व्हेन आई एम हियर। Yeah. तो आपको इसका मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फर्स्ट जिंगल बनाई ना, वेब टीवीसी की मैं बात कर रहा था, सही. 2 or 3 days later after it ran on air, मतलब 3 दिन अभी गुजरा है उसका टीवी पे, मैं मार्केट में गया टू बाय समथिंग किसी स्टोर पे, और एक फैमिली आई हुई है, एक मियाँ बीवी और बच्चा छोटा सा 5-6 साल का बच्चा। अब वो बच्चा वो गाने को गा रहा है, उस जिंगल को गा रहा है। सही है। एंड आई वाज सो blown away with the fact that he doesn't know who I am. I don't know who he is, but we somehow connected on a level that nobody of us realized. Out Right? of body experience हो रहा है. हाँ, sort of, मतलब क्या है, That's beautiful. I was able to influence his mind in a way where I did not expect it to happen and he did not expect it to happen either. Sure. अब जो भी मेरा उसका मैसेज, अगर मैं चाहता, if I had a devious intention of that jingle कि यार उसमें कुछ बुरा मैसेज होता, वो deliver हो he जाता. would have accepted it. Yes. मतलब blindly उसको तो जिंगल अच्छा लग रहा है ना, वो तो गाता रहता उसे। That's yes. हमारे यहाँ पे भी ना इस तरह बहुत सारे जो कंटेंट है, वो a lot of people don't realize इसके बुराई कैसे आती है। बुराई आप देखोगे ना तो आप उसको रेप्लिकेट करोगे। Yes. अगर हमारा सिर्फ कंटेंट जो मीडिया में हम जो भी जिस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं, वी विल रेप्लिकेट इट समवेयर डाउन द लाइन। Of course. सही है। Subliminal messaging and all that, right? Even if you don't intend it to be subliminal, even if you are saying कि नहीं मैंने तो सर इसको ड्रामे को बेच के पैसा बनाना है, हाँ. अगर आपके टॉपिक्स में कुछ इस तरह का कुछ इशू होगा that has a negative impact, तो You're आपको नजर होते हुए आएगा। ये normalize होगा ना? Normalize होगा। And then assimilate हो जाएगा. हाँ, so उसी वक्त में I decided when I heard that boy singing, मैंने कहा कि यार मैंने कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरे किसी भी काम में कोई ऐसा कोई एलिमेंट ना हो दैट लीड्स टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा ब्रो। तो मैंने मतलब आई डिसाइडेड दैट उस टाइम में अल्लाह का फजल है, काम चल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट आप इसे कह लो, आई हैव टू से नो टू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स Sure. because I don't particularly agree with their messaging concept. For example, there was this TVC shoot for this fashion brand. Okay. Yeah, exciting. Very Yeah, exciting. Yeah. very exciting and Yeah. very glamorous. Of so course. far. Sexy. सही है। Yeah. अब हुआ ये कि जब उन्होंने बुलाया कि वी वांट टू वर्क ऑन दिस वीडियो, तो आप आइडियाज पिच करने, तो आई वेंट, यूजुअली मेरा होता है 3 से 5 आइडियाज में लेके जाता हूँ, सही. एंड ऑल ऑफ दोज आइडियाज हैड, आई मेड श्योर डिलिबरेटली कि उसमें कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो, उसमें कोई ओवरली ड्रामेटिक कुछ ऐसा कोई एलिमेंट ना हो दैट गिव्स आउट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, सर इसमें नेगेटिव आइटम वाइब। नंबर नहीं है. नहीं, हियर मी आउट, हाँ. द ब्रांड मैनेजर वाज आल्सो वुमन। Oh no. ठीक है, मैंने उसको अच्छा सारी आइडियाज पिच कर दी, तब वो कह रहे नहीं यार कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। अच्छा, मैं कहा आप बता दें एक्साइटिंग क्या होनी चाहिए, या कुछ ऐसा हो जिसमें कोई कपड़े उसके थोड़े से हिल जाएं, दुपट्टा गिर जाए, या कुछ ऐसा हो कि थोड़ी सी स्किन नज़र आए, तभी तो बिकेगा। And this is coming from a woman who's a brand manager for that fashion-oriented brand. For in her mind, success is what? Dupatta girna is a good thing. Yeah, exposure of skin is a good thing. Sure. जो कि मुझे मतलब I still can't understand कि पढ़े लिखे लोग जो जिनके पास बाहर से डिग्रियां हैं, why are they still stuck in that concept कि नहीं भाई आप ऑब्जेक्टिफाई करोगे तो माल बिकेगा। यार देखो, maybe because to some degree that's the proof of concept they've gotten, right? Maybe to some degree, देखो I'm open to thinking कि ये इस वजह से है क्योंकि उनको जो है जवाब मिला है ये मार्केट से। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या खरीदोगे, उन्होंने बोला हम ये खरीदेंगे। Then it falls to them as content creators, like you said, कि भाई अब इसको फिर बदलो ना। कौन बदलेगा? मैं तो आके नहीं बदलूंगा ना, मैं तो कंटेंट बना ही नहीं सकता हूँ, आप ही बदलोगे ना इसको। तो आई सपोज इट्स जस्ट अबाउट लाइक what you've done, mashallah, and you're not that old कि आप ऐसी बातें करो, but you've taken responsibility for what you create. देखो, every person who has a voice somehow affects someone or the other. course. For example, आपका ये YouTube channel है, हाँ जी.
आपके व्यूअर्स हैं, आई थिंक 8,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा कुछ है राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. Even if you affect one single person, Yeah, either positively or negatively, that's something. that you will get to see that in your society. Sure. How? Let's say कोई बंदा है या कोई बंदी है, whatever, जो अगर you somehow change their mind to do a negative thing or a positive thing, whatever, वो एक बंदा नहीं है, वो एक माइंड नहीं है, उसकी एक फैमिली है, उसकी फैमिली में बच्चे भी होंगे, The फिर आगे butterfly जाके effect, वो सोच चलती रहेगी. Yeah, yeah. So everybody who has a voice has the power to change the society. Sure. जो स्पाइडरमैन में एक कोट है, हाँ, with great power comes great responsibility. This is Absolutely, 100% accurate. Absolutely. Yeah. So what a lot of people don't realize is कि if you have a medium to, you know, give out a message, if you use that positively, तो आपको नजर आएगा होते हुए. जी. और if you are careless enough to think कि नहीं मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इस तरह नहीं है, फर्क पड़ता है. Bro, that's basically living in bad existential faith, no? Because the thing is, इस चीज से लोग डरते हैं. Because this is a responsibility, ना? You want to walk away from it. You want to be like, नहीं, मैंने क्या, मैं एक मैंने चिप्स का पैकेट फेंक दिया यार, मैं कौन सा निकलता हूँ घर से, कोरोना में 8 महीने से निकला ही नहीं हूँ. That's not it, dude. That's not it. Every single thing that you've done, you have to take responsibility for. अल्लाह माफ़ करेगा, बिल्कुल. अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात नहीं है जो माफ़ कर सकती है. वो तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन जिम्मेदारी तो लो ना. अब ले लो. पहले जो भी गंद किया, पहले किया, अल्लाह माफ़ करे. अब ले लो. Now don't do it. Now we know ना कि objectifying women has dire detrimental effects on women everywhere. अब ना करो. Not only on women, even on men. Sure, of course, yeah. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो पोलर ऑपोजिट्स जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है, पोलर ऑपोजिट्स इन द सेंस कि एक साइड पे औरत मार्च, एक साइड पे मौलवी हजरत, गैरत मार्च. yeah. तो आई रिमेंबर जुम्मे के खुतबे में ना एक दिन जो इमाम साहब थे वो कह रहे हैं कि अब उनकी नीयत का मुझे नहीं पता, जो उन्होंने वर्ड्स अटर किया आउट ऑफ हिज माउथ, मैं वो आपको बता रहा हूँ. वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर औरत बाहर निकलेगी घर से तो मर्द से पूछा जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा कि उनका औरत के घर से बाहर निकलना इस्लाम में अलाउड नहीं है, और वो जो भी XYZ उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो भी नुक्ते नज़र थे उनके. जी. अब ये बात मैं लेके आया एक महफिल पे, हम आई थिंक किसी शादी में बैठे हुए थे या समथिंग, तो वहाँ पे उस टेबल पे कुछ मौलवी आज़ाद भी थे, कुछ लिबरल माइंडेड लोग भी थे. That table is something. अच्छा, ये बात मैं वहाँ पे लेके आया. मैं कहा अच्छा ये बात शुरू हुई थी फ्रॉम सेग्रीगेशन, जो शादियों में अक्सर होता है कि लेडीज़ अलग जेंट्स अलग. तो मैंने ये बात की कि भाई इस तरह इमाम साहब कह रहे थे कि औरत का तो घर से बाहर निकलना मना है, औरत का काम करना मना है. तो जो मौलवी आज़ाद थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट. फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में मासी है, मासी आती है काम करने? उन्होंने कहा बिल्कुल आती है. वो कैसे जायज़ है? हाउ इज़ दैट अलाउड? बाय योर लॉजिक औरत का घर से बाहर निकलना मना है. तो वो जो मासी बेचारी कहीं से अपना घर छोड़ के आपके घर में नहीं आ रही, अपने घर से तो बाहर निकली हुई है वो. सो व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे यू आर इंटरप्रेटिंग जो हमारे दीन ने बोला है? Bro, why don't they understand? Right, and this happens across the board. So not only in the religious segment, even जो हमारे liberal segment है यहाँ पे भी है. Of course, yeah. Misinterpretation of religion has led to so many problems. All the problems. मतलब I can't understand कि यार अच्छा इसको क्या करें, मतलब how do we fix this? तो the conclusion that I reached on was कि I can't fix everything. No. What I can do is कि I can make sure कि जो मैं कर रहा हूँ, what the things that I am bringing into the world in the form of visual medium या whatever, photography, whatever, I can make sure कि भाई उसमें वो चीज़ें हों that does not affect the society in a bad way. That's it. That is all I need to do. There is nothing else to do, bro. Yeah. Like इतना सही है और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा. इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है ना, you only have to in the end be mindful of this. क्योंकि दूसरी चीज़ होती है, because it's so vast ना, these issues are so deep rooted and vast. You look at them, you stare them in the eye or what have you, whatever they have, right? And आप पैरालाइज हो जाते हो. आप बोलते हो फिर तो कुछ भी करना फजूल है. ऐसा नहीं है, कुछ भी करना फजूल नहीं है. अपनी जिम्मेदारी लो. आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना आप कर सकते हो. आपसे उसी के बारे में पूछोगी और आपको बरकत दी जाएगी, आपको आपके काम में बरकत डाली जाएगी इंशाल्लाह. But you just do what you're supposed to do, right? The thing is, just because it's a losing battle, हमारी सुन्ना में ये है, just because it's a losing battle does not mean you don't fight. They never did that, and most of them were losing battles, worldly speaking, materialistic sense. What they do, they fought. So what are you meant to do? Just do your work,
right? Behral. Just I get intense for no reason. Are you on YouTube? कंपनी की अपनी चैनल है, but I'm not personally Why? on YouTube. Yeah, I never could, create content that was, क्या कहना चाहिए, और जिस तरह vloggers होते हैं, Mm-hmm. I never saw myself as one of those people. Fair Not enough, that there is yeah. something wrong with No, them. no. मेरा काम थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच में इस तरह है कि I work on content जहाँ पे कोई narrative हो, Mm-hmm. कोई ऐसा aspect हो that transports you somewhere else in the world. Awesome. For example, जो documentaries होती हैं, Mm-hmm. जिससे मैं काम करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री का एक अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है टू डू इट. Sure. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स न्यूज़ रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको लगता है कि आप एक एक्सटेंडेड न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे हो. सही. तो मेरा इसमें यह है कि आई मेक श्योर कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री को मेरा बंदा देख रहा होगा ना, तो ही फील्स लाइक ही इज़ वॉचिंग अ मूवी. Right. It should be so cinematic. Yeah. It should have all the elements of sound design and all the elements of rule of thirds and everything. Yeah, जो भी आपका एक proper cinematic film में होता है. सही. I can sort of marry these two things together and focus on that alone. मतलब उसमें इस तरह है कि आप कोई भी मेरा काम निकाल के देख लो, हाँ. documentaries, features, TVCs, whatever. They will at some point at a very minuscule level, you will be transported somewhere else for a short amount of time. Would you not argue that the audience on YouTube these days is open to that kind of content being on YouTube? Or do you think it just takes too much effort to produce that kind of thing for YouTube? Yeah, वही बात है ना, but everything that actually has any value does take a lot of effort. हाँ, तो उसमें तो कोई शक नहीं है. But वही बात है, there is an audience for every particular kind of content. ठीक है. तो कुछ vlogs वाले लोग हैं, हाँ. जो cinematic वाले लोग हैं वो भी हैं, हाँ. कुछ TikTokers भी बैठे हैं. हाँ. तो But you don't want to. I don't want to venture into that. You're not planning on it anytime soon either. No, not really. Acha. What's next? Let's end the podcast with that. What's, because you're so crazy the way you jump into things. Do you have something lined up next? कोई ऐसी आपको खुजली फिर से हो रही है हाथ में? कोई ऐसी खुजली फिर से हो रही है कि यार? There is this after this feature film project lined up है, but I can't discuss it. No, you can't. Can you discuss the general parameters of it? What's it going to be about? Is it a documentary? I don't think I can. Oh, not nothing. Right now. नहीं, but at it is this point. definitely something that is definitely. as paradigm shifting as the last thing. I would like to think so. You're fucking crazy. Let's just talk about your foray in motorcycling then. Where does that come about? अच्छा, तो Filmmaking, rugged, all this guerrilla filmmaking, उसके बीच में motorcycle. अच्छा, मोटरसाइकिल की स्टोरी ये है कि आई थिंक 2013 के बाद से ना आई गॉट इनटू साइकिलिंग. Okay. और नॉर्मल साइकिलिंग नहीं कि हाँ भाई 2 दरिया का एक राउंड लगा लिया घर चले गए, नहीं. जहाँ भी जाना है साइकिल में जाना है, ऑफिस जाना है साइकिल में जाना है, मीटिंग में जाना है साइकिल में जाना है, क्लाइंट के पास जाना है साइकिल में जाना है. अच्छा, कराची की गर्मी में. कराची की गर्मी में. जी. अच्छा, तो ये हुआ कि आफ्टर अ लॉट ऑफ राइडिंग ऑफ द साइकिल, तो आई गॉट अ सॉर्ट ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया मुझे कि अब मैं गाड़ी में बैठा नहीं जाता मुझसे. अच्छा. स्पेशली जो ट्रैफिक जो हमारे यहाँ होती है ना, मतलब एक होता है नेचुरली, पता नहीं क्या. सो आई मतलब साइकिलिंग करते फिर मतलब इस तरह है कि आई हैव टू गो टू आई चंडीगढ़ फ्रॉम डिफेंस, साइकिल में जाऊँगा दोपहर के 2 बजे 3 बजे. आई डोंट गिव अ केयर. Dude, एक बात सुनो ना, पहली बात तो we don't even have the roads for that. भाई रोड्स क्या, यू डोंट एग्जिस्ट इफ यू आर अ साइकिलिस्ट. Of course. पीपल सी यू एज कि हाँ भाई कोई मक्खी है. उड़ता परिंदा जा रहा है यहाँ से. हाँ. तो खैर वो एक अलग डिबेट है. हाँ. बट साइकिलिंग से फिर ये हुआ कि समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज यार ये चलो बोलने में अच्छा लगता है, फीजिबल नहीं है. No. बिकॉज लेट्स से यू आर अ क्लाइंट, मैं आ रहा हूँ साइकिल पे फुल स्वेटी एंड ऑल, course, यू वुड नेवर गिव मी अ प्रोजेक्ट. And also not safe, na? You have to take care of yourself. हाँ वो भी है. Yeah. So वो भी है. तो फिर ये हुआ कि आई गॉट इनटू कि यार अच्छा कुछ और करना चाहिए, मोटरसाइकिल लेते हैं. मोटरसाइकिल के बारे में रिसर्च किया मार्केट में, तो यार वही घिसे पिटे पुराने ज़माने के टेक्नोलॉजी. 80s से बाद हमने इनोवेशन छोड़ दी. सुजुकी, होंडा, व्हाटएवर जो भी आपके मोटरसाइकिल्स हैं, 80s की जो टेक्नोलॉजी सेट हुआ था बाहर, अभी तक वही चल रहा है. सही. तो एक इन द लोकल मोटरसाइकिल कम्युनिटी एक देयर इज दिस वेरी फेमस मीम टेम्पलेट. Okay. Honda launches new 2021 motorcycle with new 2021 sticker with the old motorcycle. सही. Okay, all right. और ये चलता आ रहा है पिछले 40 सालों से. Okay. So जब मैं मार्केट में ढूंढने गया तो nothing really, nothing clicked. Okay.
कि यार नो दिस इज़ नॉट सेफ. अच्छा, इसका मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्क ब्रेक हमारे यहाँ पे अभी तक कॉमन नहीं हुआ. जो डिस्क ब्रेक टेक्नोलॉजी है हमारे लोकल बाइक्स में नहीं होता, यहाँ पे इसमें ड्रम ब्रेक्स होते हैं. सही. डिस्क ब्रेक इज़ अ वेरी सेफर ऑल्टरनेटिव टू जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है, जो कि पूरे दुनिया में आए हुए 20 साल हो गए. ठीक है. हमारे यहाँ अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ. सही. तो फिर आई रिसर्च अ बिट कि यार आई नीड समथिंग दैट इज़ चीप प्लस यू नो टेक्नोलॉजिकल वाइज थोड़ा सा एडवांस्ड हो. फिर आई लर्नड अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड बेनेली. ऑलराइट, बेनेली. बेनेली इज़ एन इटालियन ब्रांड. सही. जो कि कोई 100-110 साल हो गए इसको. सही. माशाल्लाह. एंड दे आर मेकिंग मोटरसाइकिल्स विद ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज बिल्ट इन. और पाकिस्तान में अभी आए हुए इनको 2-3 साल हुए हैं. अच्छा, पाकिस्तान में आ गई है. आ गई. पाकिस्तान में 2-3 आ गई है ना. हार्ली डेविडसन इज द हार्ली डेविडसन तो ये है ना कि यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब ऑफिशियल नहीं है. वो इस तरह के इम्पोर्टर्स बैठे हैं जो वहाँ से आपको यहाँ ला के दे रहे हैं. अच्छा. हाँ, ऐसा हुआ. हार्ली हो गया. फिर आपका इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांड्स, अप्रिलिया अभी यहाँ पे एंटर हुआ है. अच्छा. दे मेक मोटो जीपी मोटरसाइकिल्स. ओके. तो मोटो जीपी वो होती है जो आप देखते होगे जो बंदा आगे होके चलाता है. हाँ हाँ. दैट इज स्पोर्ट्स बाइक बोलते हैं जिसको. स्पोर्ट्स बाइक वो नहीं होती. स्पोर्ट्स बाइक जैसे हायाबुसा है. हायाबुसा का अगर आपने नाम सुना, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, बट उसमें भी आपको इस तरह चलना. अच्छा भाई बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या पता है. फिर आप मुझे बताओ कि मैं कितना गलत हूँ. एक होती है सुपर बाइक. सुपर बाइक होती है जिसको आगे बढ़ के चलाना होता है. नहीं, सुपर बाइक होती है हायाबुसा. ठीक है. सुपर बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो है एनीथिंग दैट इज एनी बाइक, एनी मोटरसाइकिल दैट is first used as a proof of concept. कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप BMW गाड़ियों की बात करो ना, तो हर गाड़ी के मैन्युफैक्चरर का ना एक होता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है. हमने कभी बेचनी नहीं है, बट वी जस्ट पुटिंग इट आउट देयर सो दैट यू कैन सी हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, हम बना सकते हैं. तो वंस अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज अनाउंस्ड, तो फिर समवेयर डाउन द लाइन दे स्टार्ट टेकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम दैट कार एंड अप्लाई दैट टू वो मॉडल्स जो वो कर रहे हैं, बना के बेच रहे हैं. तो इस तरह हायाबुसा हो गया या इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हो गए मोटरसाइकिल्स के. दीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स बैक इन द 80s एंड जब भी ये लॉन्च हुआ था. फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी एलीट रेसिंग जो आपके कह लो कम्युनिटी जो रेसेस होते थे इटली में, फ्रांस में, एवरीवेयर, वहाँ पे इनकी एक स्पेशल रेस हुआ करती थी साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह. फिर व्हेन पीपल सॉ दोज सुपर बाइक्स बीइंग यूज्ड, उन्होंने कहा यार हमें भी चाहिए. अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, these motorcycles were never meant to be ridden on roads. That's the thing, right? Because people are like enthusiasts. दोस्त हैं कुछ मेरे अंदर just like यार ये वाली चाहिए मुझे ना फला मोटरसाइकिल. I'm like okay cool, इसका क्या सीन है? 1000 cc. Why the fuck do you want to ride a death rocket? 1000 cc चलो ठीक है, okay fine, आपने मरना है, very good. But it's not only about the cc, it's about सेफ्टी प्रैक्टिकल मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ. लेट्स से इफ यू आपकी जो पोस्चर है वो इस तरह है, राइट, यू आर कंप्लीटली, अच्छा वो इसलिए होता है बिकॉज आपको एयर रेजिस्टेंस को काटना होता है, इसलिए आप इस तरह आगे झुके हुए होते हो. इफ यू क्रैश देयर इज नथिंग यू कैन डू टू गेट ऑन योर ओन 2 feet. नो, आपने आगे जाके रोल होके गिरना है और मरना है. सही है. तो सुपर बाइक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है विद प्रॉपर अटायर, प्रॉपर लेदर सूट्स, विद पैडिंग एंड एवरीथिंग, विद प्रॉपर हेलमेट्स. और आजकल तो वो भी इनका वो भी आ गया, एयर बैग्स भी आ गया मोटरसाइकिल्स का. अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कितनी दफ़ा आपने लोगों को देखा है वेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन? चप्पलों में चला रहे होते हैं, 1 करोड़ की मोटरसाइकिल चला रहे होंगे. चप्पल में 2 पट्टी. हाँ, वो दूध के लेने जाना, चीनी लेने जाना, वो अपने 1 करोड़ की मोटरसाइकिल में जाके 200 की स्पीड में जाके दूध लेने जा रहे हैं. सही है. And there's been horrendous accidents. There's this video that somebody sent me on WhatsApp in one of those motorcycle groups. There was this guy who in Faisalabad, he was riding some, I think Hayabusa or whatever, I don't know the bike. Speed थी उसकी कोई 250 something, and when he crashed, his body was split into 2. Literally 2 pieces, नीचे का अलग, ऊपर का अलग. अच्छा, अब 250 के स्पीड में बंदे ने ना हेलमेट पहनी है, ना ग्लव्स पहने हैं, ना कोई और प्रोटेक्शन है, नॉर्मल टी शर्ट, चड्डा, नॉर्मल स्नीकर्स, 250 की स्पीड. सो यहाँ पे इसको अनफॉर्चुनेटली कूल समझा जाता है. अब बहुत से मेरे दोस्त भी होते हैं ना, जब वो कहते हैं कि यार चल राइड पे चलते हैं, तो अब आप उनको बोलो भी ना हेलमेट पहन के आओ. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना ब्रो. लड़की है क्या? मतलब हेलमेट को पता नहीं क्यों लोगों ने वो बना दिया है कि यार दिस इज समथिंग दैट, मतलब इट्स नॉट अनकूल.
मतलब fuck that noise, bro. Fuck that noise. तो अच्छा, दिस इज़ कॉमन इन द साउथ एशियन कम्युनिटी है, बाकी दुनिया में मैंने इस तरह नहीं देखा। जो आपके कुछ एरियाज हैं जैसे टोक्यो हो गया, वहाँ पे भी बड़ी एक्टिव है मोटरसाइकिल कम्युनिटी है अभी, वहाँ पे होता है इस तरह, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट प्रोटेक्शन व्हाटएवर, उन्होंने भी यही होता है, मरना है तो मरना है। आई रिमेंबर देयर इज दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन सम लोकल चैनल ने एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई थी इसके बारे में। तो यहाँ दो दरिया में ना, जो आपके अक्सर होते हैं पिंडी बॉयज आते हैं विद हैवी बाइक्स, वो उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते, या आप 300 की स्पीड में क्यों चला रहे हो, 250 की स्पीड में क्यों चला रहे हो। अब एक बंदा आया, आई थिंक ही वुड बी अबाउट 16-17, सही है, क्या बोल क्या रहा है, मतलब भाई जो है कहता है ब्रो ज़िंदगी शुरू होती है 250 किलोमीटर के स्पीड के बाद। अच्छा, विद नो प्रोटेक्शन। जी ऑफ कोर्स। मतलब how do you reason with that mentality? You don't. You can't. You don't. Just walk away. You just say हाँ You भाई walk ठीक है। away. The only problem is जो हमने economics में पढ़ा था, externalities, right? The minute that becomes my problem, then it's a problem. ना, जब तक आप अपने आप को you want to ride a death rocket into the fucking sea, be my guest, मतलब अब मैं आपको क्या करूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन the minute it becomes a problem for me, my friends or my family or anyone, ना, then that's a problem. Or forget me or my circle, anyone else, anyone who just happened to be walking there, anyone who just happened to be also at the दूध वाला shop when this boy दो पट्टी चप्पल में 200 किलोमीटर की स्पीड पे दूध लेने आया था, anyone else who's at risk, that's the only problem ना। I think very generally, और ये मैं फिर generalize कर रहा हूँ, इतनी मैं generalization करता हूँ, that kind of wanton disregard for the other person's sanctity or security, anyone else, everyone else's security or sanctity, issue है bro। मैं आपको कराची की मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ रोड्स व्हिच आर वन वे। जी बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ साइकिल में भी होता था, मोटरसाइकिल में भी होता है। इफ़ यू आर गोइंग, जो आपके लिए मुकर्रर रास्ता, आपके लिए डायरेक्शन बनाया हुआ है, जी 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 जी, आप अपने तरफ से सही जा रहे हो, जी 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 जी, उसी रोड में एक बंदा रॉन्ग वे आएगा। जी बिल्कुल, और पे गाली भी देगा। नहीं अब आप रोकोगे या आप कुछ उसको बोलोगे कि भाई आप रॉन्ग वे आ रहे हो, हाँ, ये माजरत के साथ आप रॉन्ग वे आ रहे हैं। जी आप ज़रा मेहरबानी करके पीछे हो जाएं। हाँ तू कौन है बे? हाँ, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? कोई चल हट। ना, सही। आई रिमेंबर, मैं खड्डा मार्केट में बात कर रहा हूँ, जी हॉट एंड स्पाइसी के सामने ना, देयर इज दिस वन सिंगल लेन रोड जहाँ पे एक गाड़ी गुजर सकती है। सही। मैं साइकिल में था, तो दोनों तरफ पार्किंग होती है, हॉट एंड स्पाइसी के लोग होते हैं वो, मतलब तो देयर इज लिटरली 10 फीट की जगह होती है, 10 फीट में आपने गाड़ी लेके गुजरना है। सही। मैं साइकिल में जा रहा हूँ, एक बंदा वहाँ से रॉन्ग वे आ रहा है, सही। मेरे पीछे भी गाड़ियाँ। तो जो वेटर्स हजरात थे जो वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि यार आप सर साइड से ले लें, तो फिर देखेंगे वो गाड़ी वाले जाने उनका जाने, आप तो निकल जाएं। मैं कहा मैं क्यों निकलूँ भाई, मेरा बाय लॉ आई हैव द राइट टू राइड ऑन द सेंटर ऑफ द लेन, और मैं सही काम कर रहा हूँ। वो बंदा अगर गलत आ रहा है तो वाई शुड आई मूव साइड। अच्छा, ये हुआ कि मैंने साइकिल बिल्कुल उसके बोनट के सामने आके रख दी, मतलब मैं इस तरह आ रहा हूँ, वो इस तरह आ रहा है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल रख दी। बॉलीवुड मूवी है। अच्छा, मैं निकला था जिम से तो फुल हाइप पम्प्ड अप होके निकला हुआ था। सही। अच्छा, अब मैंने इस तरह बंद कर दिया। अब वो मुझे हेडलाइट से ना वो फ्लिकर कर रहा है कि रात का टाइम है, रात के टाइम में क्या हटो ये वो। मैं नहीं हट रहा, आप गलत आए, आप पीछे जाओ। हार्डली 14 साल का बच्चा होगा वो। कौन सी गाड़ी चला रहा है? रीवो चला रहा है, पीछे गार्ड्स बैठे हैं। फकिंग ऑफ कोर्स, जस्ट लिसन टू द एंटायर स्टोरी। पीछे गार्ड्स बैठे हैं, गार्ड उतर के आ गए, भाई हटो साहब जा रहे हैं, ये है वो है। आई डिड नॉट मूव असाइड, क्योंकि इवन इफ आई डिड, मेरे पीछे भी 3-4 गाड़ियाँ हैं, ही हैज़ टू गो बैक वेयर ही केम फ्रॉम, मतलब वो चाहे भी तो मुझे बाईपास करके नहीं जा सकता। अब वो भाई साहब ने क्या किया, उसने ना गाड़ी और आगे बढ़ाई, एंड इतनी आगे बढ़ाई कि जो मेरे आगे का टायर था वो थोड़ा सा बेंड हो गया, बिकॉज मैं हिल नहीं रहा था, आई जस्ट स्टूड माई ग्राउंड। जब उसका फ्रेम बेंड हो जाए ना अगर टायर का, मतलब वो टायर गया। अल्लाह, ओके। एंड जो बाइक्स जो साइकिल्स मैं चलाता हूँ वो भी थोड़े से अच्छे हाई एंड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अगर आप एक तो नंबर 1 उसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं, मिल भी अगर तो आपको इंपोर्ट करना होगा तो फिर अच्छी खासी पंचायत है। हाँ, जब उसका व्हील बेंड हो गया तो मैं पागल, मैं साइको यार, मतलब नुकसान भी मेरा कर रहे हो, गलत भी आप हो, और बातें भी मुझे सुना रहे हो। तो इस तरह बहस हो गई। जब बहस हुई तो फिर काफ़ी सारे लोग आके जमा हो गए तो दिस जो 14 साल का बच्चा था वो बाहर गाड़ी से निकला, एंड ही टुक आउट अ नाइफ
apparently they carry knives in Okay. the Revo. in the Revos, in all the Revos, they carried the Mustaqfa. अच्छा not the छोटा वाला जो सेब काटने वाली नाइफ No, जो bro. मशेटी होती है ना, मशेटी लेके वो Samurai sword लेके निकला भाई. मशेटी लेके बंदा आ गया कि भाई चल भाई अब हो गया कहानी, सीन ऑफ है. हाँ, तो अच्छा when all the other people saw this कि भाई ये क्या हो रहा है, हाँ. खून वून हो जाएगा यहाँ पे. हाँ. So somebody stepped in, कोई अंकल एक बड़े अच्छे हज़रात थे, उन्होंने उससे नाइफ छीनी. नाइफ छीन के ही took out the keys from the car. जो उसकी गाड़ी की, तो उसने क्या किया था, गाड़ी से निकला और दरवाज़ा खोल के मुझे मारने आ रहा है. तो वो अंकल With his machete. with his machete. जी. तो उस अंकल ने गाड़ी से चाबी निकाली. सही. चाबी निकालने के बाद थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा और भी लोग जमा हो गए. तो फिर इवेंचुअली एंड में यही हुआ, ही हैड टू गो बैक Yeah. बिकॉज इवन इफ ही वांटेड टू ही कुडंट गो अहेड बिकॉज आगे गाड़ियाँ हैं. Yeah. जब वो पीछे जा रहा है और मैं मतलब अच्छा बड़ा एक वो हो गया कि यार एक साइकिल वाले बंदे ने रीवो को पीछे करवा दिया. सही. तो लोग थोड़े वेटर थोड़े ने ताली बजाना शुरू कर दिया. यार बड़ा अच्छा काम है. अभी मरने वाला था मशेटी से. अच्छा द एंटायर टाइम दिल ना मेरा धक 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 धक. मैं Yeah, कहा bro. यार मैं किस काम के लिए अब खुदकुशी कर रहा हूँ. हाँ, yeah, of सही है. course. बट इवेंचुअली हुआ ये कि जब वो बंदा पीछे गया ना और सबने जब ताली बजाई तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि आई कांट मतलब वो होता है ना कि इफ़ यू डूइंग समथिंग राइट एंड पीपल एक्नॉलेज दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट, हाँ. तो एक होता है ना कि यू गेट दिस फीलिंग, एक यूफोरिक फीलिंग होती है. Sure. तो अब इससे खैर कहानी लंबी हो गई. लेसन मेरे ख्याल से ये है कि इवन इफ़ यू नो दैट यू आर इन द राइट और अगला बंदा कोई गलत काम कर रहा है एंड यू स्टैंड योर ग्राउंड, तो अल्लाह आपका साथ देता है. अल्लाह ताला साथ देता है अपना अरसलान, लेकिन उसमें यही है कि वन ऑफ द आउटकम्स इज दैट देन यू गेट हर्ट, राइट. अल्लाह ताला ने आपका साथ देना है इंशाल्लाह, बट द टेम्पोरलिटी ऑफ दैट यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ कि इमीडिएटली उस बंदे को उसको बंदे को कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे. इफ यू ट्रीट अनदर पर्सन विद दिस काइंड ऑफ डिसरिगार्ड, आपको हिसाब देना पड़ेगा, राइट. बट अगेन व्हाट मोस्ट पीपल आई सपोज रीजन, हाउ मोस्ट पीपल रीजन इज कि यार वही जो आप बोलते ओके व्हाट एम आई गोना अकॉम्प्लिश. वो बंदा जो है 14 साल की उम्र में वो ये कर रहा है कि क्या बनेगा, ये क्या सीखेगा ये. यार वो देखो देयर विल ऑलवेज बी सच पीपल इन एवरी सोसाइटी. या मसला यहाँ आता है कि जो सोसाइटी तब बर्बाद होती है जब जो अच्छे लोग हैं दे डू नथिंग. या व्हेन दे स्टे साइलेंट. श्योर. जो ये बात हुई थी किसमें, I Tears think of the Sun. जो मोटरवे वाली जो कहानी हुई थी, हाँ. व्हाट हैपेंड, जो एक नॉर्मल एक कॉमन एक स्टेटमेंट आता था ना लोगों से, आप तब कब तक चुप रहोगे, एक दिन ये आपके घर में भी होगा तब भी चुप रहोगे, या आर यू वेटिंग फॉर दैट डे टू हैपन अल्लाह रहम कि ये आपके घर में या किसी आपके घर की खातून के साथ हो. अल्लाह रहम कर. सो इफ़ वी एज अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सारे सब कुछ अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दीज थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो फिर हमारे पर लानत है यार. कितने अच्छा इस तरह कितने लोग हैं, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी है कराची में, कितने लोग होंगे ऐसे जो ये रिवो वाले Revo with वाले. the machetes. हाँ हार्डली 1%. Yeah. Hardly Sure, 1%. Sure. Yeah. 2.5 करोड़ का 1% कितना हुआ? पता नहीं ब्रो, मतलब 2.5 लाख? हाँ ऐसे ही कुछ होगा. 2,500, 30,000, 25,000 whatever जो भी हाँ है. जो भी है, चलो 2 लाख कर लो. 2 लाख कर लो. हाँ. अगर 2 लाख का और 2 करोड़ का कोई वो है No, असल है bro. नहीं No. है. द प्रॉब्लम इज के वी सिंपली चूज टू बी साइलेंट. Yeah. जहाँ पे हमने आवाज़ उठाई थी, जो DHA वाली जो कहानी हुई थी बारिशों के टाइम में, हाउ मेनी पीपल वेंट टू द ऑफिसेस? 150 maybe. 150? Yeah. आउट ऑफ हाउ मेनी? 20,000, 50,000 Yeah. जो टोटल DHA में लोग रहते हैं. Yeah. पानी सबके घर में आया बारिशों में, नुकसान सबका हुआ, लेकिन सिर्फ 250 लोग उठ के गए. सही. तो यहाँ पे पता चलता है कि यार इस सोसाइटी में ना कुछ मसला है. Bro, it's disjointed, ना? We're not unified. There's no unity. या इट्स नॉट ओनली अबाउट यूनिटी, इट्स अबाउट कि मेरा मसला नहीं है. फॉर एग्जांपल आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए ना, आपका मसला नहीं है. Apathy. तब तक मसला नहीं है जब तक वो आग आपके घर तक नहीं आ जाए. Bro, I have a wonderful quotation. I think it's a Native American proverb. When the axe entered the forest, the trees said, "Look, the handle is one of us." One of us. Right? Yeah. It's Beral. I suppose that's a good place to end it. Sure. Aslan, this has been absolutely wonderful. Likewise. You're doing phenomenal work, and I can't wait for the feature film to finally be done. अभी तो खैर उसमें post production process होगा. Besides that, like anything else you would like to shout out? You don't even want to be on YouTube, so what do you want to shout out? Anything? Yeah, I wouldn't, I would like to end it by saying it's not only about, I don't want to advertise myself. No. जो मैं अपने काम से भी अक्सर लोगों को बताना चाह रहा होता हूँ ना कि यार
थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल करो. सिर्फ मेटाकॉग्निशन थोड़ा. हाँ, थोड़े से आप 1% अगर 24 घंटे में आप अगर 1 मिनट 5 मिनट भी अगर आप सोचो ना दुनिया के बारे में, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे. सही, इंशाल्लाह. या सो बस ये मैसेज है टू एवरीबडी हु इज वाचिंग. प्लीज थिंक Please think. and don't fucking carry around machetes. Yeah, definitely don't. or maybe do, dude. How do I know, right? Like, I don't know. मतलब I would personally, samurai sword अगर होती ना, मैं वो लेके निकलता. That'd be cool. Samurai sword है. मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताता हूँ. I usually carry a pocket knife with me when I'm cycling. Sure, okay. जो बैग मैंने पहना होता है यहाँ पे ना उसके स्ट्रैप पे लगाया होता है. This one time sea view पे near आपका चंकी मंकी, 2 guys started following me. Oh no. और मतलब they were robbers basically. Okay. हाँ. तो उनका ये था कि वो फॉलो कर रहे थे इत्तेहाद से आते हुए चंकी मंकी तक उन्होंने फॉलो किया और फिर आगे आके रुक गए. जब रुके तो फिर जो उनका पीछे वाला बंदा था वो निकला विद अ गन, शलवार से निकाली उसने, एंड ही शोइंग इट टू मी कि भाई मैं आ रहा हूँ. तो मैं कोई आई थिंक 20 फीट दूर मैंने अपनी साइकिल रखी हुई थी. तो अब मैं देख रहा हूँ वो हो रहा है, मतलब वो आ रहा है, समथिंग इज अबाउट टू गो डाउन. सही. I took out my pocket knife. मैंने कहा मेरे पास भी है. right. So now we've established a few things, including you're fucking crazy, dude. Anyways. But let me end it. He saw that pocket knife. He did. And he ran away. He was so into the concept कि यार मेरे पास गन है तो मैं तो चीता हूँ. But even a small pocket knife was able to frighten him to an extent कि he ran away. He said कि नहीं भाई this is not worth the risk, मरना नहीं है. तो यही हमें करने की देर है. As a society आप थोड़ा सा भी कर लोगे ना तो बहुत मसले हमारे हल हो जाएंगे. Do your bit. Yeah, Do your bit. Do your bit. Aslan Majid, Qazi Akbar. Assalamu alaikum.